जी अस्सलाम वालेकुम। तो कल की जी हमारी जो डिस्कशन रही, हमने एक क्वेश्चन देखा था पहले डायनेमिक लिमिटेड का, और इसके बाद बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को लेके हमने रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही बेस एक क्वेश्चन सिटी लिमिटेड किया। और आपको असाइनमेंट में मैं अगर यहाँ पे मार्क कर दूँ इस स्टेज पे, आपको बीबीएस का एक क्वेश्चन होम असाइनमेंट में आपको मार्क किया गया था। अभी इस रीऑर्गेनाइजेशन पे हमने मजीद क्वेश्चंस करने हैं, आगे और क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे रीऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर इंशाअल्लाह, जिसमें जैसे कुछ रिवीजन होगी सिटी वाले बेस कॉन्सेप्ट्स की और कुछ वेरिएशन से भी हम डील कर रहे होंगे। तो अभी हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करते चलनी है, और उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सुपर स्काई इंटरनेशनल एयरलाइंस का है। क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा सा घूम फिर के आ रहे हैं 13 पे, 37 पे, फिर 14 पे आएंगे। तो 37 पे जी सुपर स्काई पेज 418 पे हमें क्वेश्चन मिलेगा। सुपर स्काई इंटरनेशनल एयरलाइन समर 21 क्वेश्चन 5, और इसकी रिक्वायरमेंट है जी काफ़ी दूर जाके, क्योंकि ये 25 नंबर का सवाल है, पूरे 2 सफ़ों पे फैला हुआ है। तो इसका पार्ट ए जो है जी, डिटरमिन अ वैल्यूएशन फॉर WL's equity share by using SIL's risk adjusted weighted average cost of capital। WL's के शेयर को वैल्यू करना है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड वैक लेना है SIL का। अच्छा, ये क्या कहानी है कि WL की वैल्यूएशन SIL के वैक पे, वैल्यूएशन के लिए वैक की सिलेक्शन, थोड़ी इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले सवाल पढ़ लें तो फिर हम ये WL की इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन SIL के वैक पे, मतलब इसकी क्या रिलेशनशिप है, क्या लॉजिक है, इस पर बात करेंगे। पहले कहानी पढ़ते हैं थोड़ी सी, फिर डिस्कशन करेंगे इसको। सुपर स्काई इंटरनेशनल लिमिटेड SIL is a listed international airline carrier based in Karachi with routes to neighboring countries, some Russian states and European countries. SIL currently does not operate a domestic schedule in Pakistan, so the board of directors have expressed an interest in acquiring Wings Limited WL, a low-cost regional private airline company which schedules domestic flights between Karachi, Lahore and Islamabad. सो SIL एक इंटरनेशनल एयरलाइन, एक लोकल एयरलाइन WL को टारगेट करने लगी है। इंफॉर्मेशन ऑन WL। WL इज एन अनलिस्टेड कंपनी विथ 500,000 इशूड शेयर्स। WL's recent results for the year ended 30th June 2020 are as follows. Revenue rupees in million में given है, expenditure other than depreciation of property, operating profit, finance charge, profit. In order to assist with the valuation, the directors of WL have provided the following information and assumptions. क्या है जी information and assumptions हमारे पास? Annual growth for the year 30th November 21 to 2024 is expected as follows. Revenue 2.5, expenditure except finance charge 2%, finance charge 0। ये जी हमें 21, 22, 23, 24 की ग्रोथ मिल गई। There is no revenue or cost inflation from 2025 onwards. Annual capital expenditure on aircraft is expected to be as follows. WL के aircraft पे annual capital expenditure क्या expected है? हमें 4 सालों का दे दिया गया। From 21 to 24, capital allowances on aircraft are expected to be 10% per annum on reducing balance basis. The tax written down value on WL's present fixed assets at 1st December 2020 is rupees 9,000 million. For 2025, each year thereafter, annual capital expenditure on aircraft is equal to cash inflows from tax saved on capital allowances in that year. Annual corporation tax is expected to remain at 29%. For the year 21 to 24, additional working capital equal to 10% of the increase in revenue for that year will be required. Working capital requirement is rupees 10 million per year.
from 2025 and onwards, annual increase in working capital requirement is 10 million per annum. WL has 1,000 million rupees long-term debt at 4.8%, interest per annum. Information on SIL. The current paid-up capital of SIL is 2 million shares. Each share is currently trading at 4,300 per share. SIL has currently has 2,000 million of corporate bonds. The average maturity of SIL's corporate bond is 18 years. SIL's currently has AA credit rating. Market information available है जी. Quoted credit spread for corporates in airline sector are as follows. ये credit rating credit spread table से हमने डील किया हुआ ना पीछे के. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्रेडिट स्प्रेड टेबल को देखा हुआ कभी? क्रेडिट स्प्रेड टेबल हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं देखा हुआ. आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर मैं रिकॉल करूं तो आपको इक्वेशन बताई भी है शायद कि केडी को एक निकालने का तरीका आरएफ प्लस क्रेडिट स्प्रेड भी है. मुझे कोई याद पड़ता है ऐसी बात हुई भी है? नहीं हुई? बूढ़ा हो गया उसका मतलब मैं वाकई ही क्रेडिट स्प्रेड का जिक्र नहीं हुआ आपके साथ? कल तो और जिक्र था कॉस्ट ऑफ डेट की कैलकुलेशन में. फिर मैं अच्छा जी चले फिर आज और जिक्र ले लेते हैं. ये क्रेडिट स्प्रेड टेबल हमें अवेलेबल है क्रेडिट रेटिंग के साथ. क्रेडिट रेटिंग के कॉन्सेप्ट से तो आप लोग फेमिलियर है ना बाय नाउ. तो क्रेडिट स्प्रेड जब अवेलेबल होता है तो क्रेडिट स्प्रेड की बेसिस पे यील्ड इज इक्वल टू आरएफ प्लस क्रेडिट स्प्रेड. एक तो यील्ड निकालने के हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं. यील्ड निकालने के इरिडीमेबल डेट की यील्ड लेनी है आई ओवर मार्केट वैल्यू. रिडीमेबल डेट की यील्ड लेनी है प्री टैक्स कैश फ्लोज की आईआरआर. ठीक है, ये हमने यील्ड और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट फर्क हमें पता ना. तो अगर आपको डेटा इस शेप में अवेलेबल हो, आपको क्रेडिट स्प्रेड दिया जाए क्रेडिट रेटिंग के साथ, तो यील्ड का ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है. और यील्ड आ जाए तो पोस्ट टैक्स बनाने के लिए सिंपली 1 - t किया जाता है, खत्म हो गया. तो हम यहां पे देख रहे हैं क्रेडिट स्प्रेड से जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ी है क्रेडिट स्प्रेड बढ़ा है. ये नॉर्मल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे मैचिंग है कि लॉन्ग मैच्योरिटी के लोन्स एक्सपेंसिव होते हैं. जैसे जैसे क्रेडिट रेटिंग गिर रही है वैसे वैसे क्रेडिट स्प्रेड बढ़ रहा है. क्रेडिट रेटिंग गिरने का मतलब लेंडर का क्रेडिट रिस्क बढ़ रहा है. क्रेडिट रिस्क बढ़ने का मतलब आपकी क्रेडिट स्प्रेड बढ़ रहा है. ठीक है, तो अगर आपको क्रेडिट स्प्रेड इंफॉर्मेशन दे दी जाए और एक कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बता दी जाए तो आप यहां से भी उस कंपनी के मैचिंग डेट का यील्ड बना सकते हो. यील्ड बन गया तो पोस्ट कॉस्ट ऑफ डेट सिंपली 1 - t होती है. तो कॉस्ट ऑफ डेट का एक ये भी तरीका है जो हमें आ सकता है, आया है, बल्कि आ सकता है, आया है, लेकिन इट्स वेरी बेसिक. सिर्फ ये इक्वेशन आपको याद करनी है. इसके अलावा जो कुछ सीखना भी इस सवाल में 1 मिनट की कैलकुलेशन है वो सीखेंगे तो काम खत्म हो जाएगा. ठीक है, शायद इसलिए मैंने इसको पीछे कहीं अलग से इलस्ट्रेशन में कवर नहीं किया क्योंकि ये बड़ा बेसिक से ही इस सवाल में चीज़ क्लियर हो जाती है और मैंने सवाल को अपने प्लान में रखा हुआ है. अच्छा जी, ये उसने बताया हुआ जी 1% 100 बेसिस को कहा जाता है. ये बात हम पहले भी हम कर चुके हैं. द करंट यील्ड ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरएफ मतलब 3.75 है फॉर ऑल बॉन्ड्स मैच्योरिटीज. द करंट मार्केट रिटर्न ऑन पाकिस्तान इक्विटी मार्केट पोर्टफोलियो आरएम 6.85 है एंड द पाकिस्तान कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 29% फॉर द फोरसिबल फ्यूचर. द एवरेज एयरलाइन इंडस्ट्री इक्विटी बीटा 2.45 है एंड 50% गेयरिंग है. मेजर्ड कैसे है? डेट ओवर इक्विटी. डेट ओवर इक्विटी इज 50%. डेट ओवर इक्विटी 50% का मतलब क्या है कि इक्विटी इज 100. ऐसे ही ना, मतलब यही है ना सर. डेट ओवर इक्विटी 50% का मतलब क्या है कि डेट 50 है, इक्विटी 100 है ना. अगर मैं रेशियो में लिखूं तो इसको मैं 50 रेशियो 100 लिखूंगा ना,
1:2 लिखूंगा ना डेट इक्विटी को, ये बात बनती है ना। जरा मुझे बताओ पढ़ के, ये मैंने ठीक लिखा है? ये रेशियो में पढ़ के बताओ, क्या मैंने ये बात ठीक इंटरप्रेट की है? ठीक है, ये भी वेल आई कैप की इंटरप्रिटेशन, इसकी आंसर में इसको 50-50 ट्रीट किया गया, जो मुझे नहीं समझ आता। आंसर में इसको 50-50 ट्रीट किया गया है, लेकिन जो लिखा हुआ है इसका मतलब 50-100 है। बेटा हम पढ़ते हैं, मतलब ये आपने बेंच मार्किंग शुरू कर देते हो, इसको हम कहते हैं बेंच मार्किंग सेट के, उसको कहते हैं स्पॉटिंग शुरू कर देते हो। अब सिटी पे चले गए, मैं सिटी पे नहीं गया, मैंने सवाल पढ़ा, उस पर फोकस किया। ठीक है, सिटी में क्या लिखा है उसको मैं अलग से पढ़ लेता हूँ, बट इसके बारे में क्लियर हूं कि मैंने, इसलिए मैंने आपसे इंडिपेंडेंट इस पे वेरिफिकेशन मांगी। डेट ओवर इक्विटी 50% का मतलब क्या? 50/100, जो इसने लिखा हुआ उसका मतलब यही है। सीटी में क्या है उसको हम अलग से जाके पढ़ते हैं। तो सीटी में उसने कहां पे जिक्र किया जी? उसने कहा एवरेज गियरिंग ऑफ द कंपनीज एंगेज इन बिजनेस स्टील इज 70। उसने फार्मूला नहीं बताया यहाँ पे, उसने यहाँ पे फार्मूला नहीं बताया। तो सूलन यहाँ पे वी आर एट लिबर्टी कि हम डेट ओवर इक्विटी से इसको 70-30 समझें या डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी से 70-30 समझें। यहाँ पे सीटी के क्वेश्चन में वी आर एट लिबर्टी टू अज्यूम इट डेट ओवर इक्विटी और डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी गियरिंग हमें दी जाती है, और नॉर्मली हम डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी गियरिंग को लेके रेशियो बना के आगे चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली उसने बता दिया डेट ओवर इक्विटी। अगर उसने कहा ना गियरिंग 50% गियरिंग करता तो मैं 50 डेट 50 इक्विटी लेता इसको। अगर यहां पे जुमला खत्म कर देता तो मैं इसको 50 डेट 50 इक्विटी लेता, जैसे हमने सिटी में ली 70% गियरिंग है, तो नॉर्मली उसको यही समझा जाता है 70% गियरिंग का मतलब 70 डेट 30 इक्विटी, 50% गियरिंग का मतलब नॉर्मली यही समझा जाएगा। ऑल्दो वी स्टिल हैव द लिबर्टी in the absence of the formula, we have liberty. We know gearing is calculated, can be calculated using any of the two formula, debt over equity या debt over debt plus equity। तो यहां पे it is clear कि नहीं भाई debt over equity है, तो उसके हिसाब से ये रेशियो बनती है। तो ये एग्जामिनर ने जो रेशियो यूं किया है ये गलत है। ठीक है, तो इसमें बीएफटी में हमें मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा गलतियां तो नहीं, लेकिन कोई हम 10 सवाल करते हैं, 10 में से कोई 1-2 में गलतियां नजर आ जाती हैं, कोई एक आध छोटी मोटी गलती नजर आती है। इसीलिए आपको कहा जाता है अप्लाई योर माइंड, डोंट जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड रीड द आंसर इन रिस्पॉन्स। तो आपको इस तरह की चीजें पिक नहीं होती, आपकी नॉलेज बेस अपनी फाउंडेशन पे बैठती नहीं है, वो हिल जाती है थोड़ी थोड़ी। आप जैसे सीटी को अगर समझ लिया तो सीटी की ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते, हर जगह सीटी की ट्रीटमेंट लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। हर सवाल को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, उसकी वर्डिंग को पढ़ना है, वर्डिंग डेविएट जैसे हो उस हिसाब से ट्रीटमेंट बदलें। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मुझे लगता है कि मैं आई डोंट वांट टू बी साउंड लाइक दैट, लेकिन एग्जामिनर ने सवाल तो बनाया किसी और बुक से, लेकिन सोल्यूशन सीटी को देखकर बना दिया। मतलब उसने भी सवाल बनाते हुए कुछ और साइंस लगाई, लेकिन सोल्यूशन करते हुए उसने भी वो स्टीरियोटाइप कर दिया कि भाई वहां पे ऐसा था तो इसको भी ऐसा ही होना चाहिए। सवाल उसने किसी बुक से बनाया था जिसने थोड़ा ट्रिक करना चाहा था, लेकिन आंसर में वो ट्रिक रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इसके आंसर में बात गोल होगी। तो एनीवेज, शेयर ऑफर, डायरेक्टर्स ऑफ एसआईएल आर कंसिडरिंग मेकिंग अ 2-for-1 शेयर ऑफर विच विल रिप्लेस ईच एग्जिस्टिंग डब्ल्यूएल शेयर विद 2 न्यू एसआईएल शेयर्स। ये जी शेयर ऑफर के थ्रू एक्विजिशन का प्लान है। डिटरमिन अ वैल्यूएशन फॉर डब्ल्यूएल इक्विटी शेयर बाय यूजिंग एसआईएल्स रिस्क adjusted weighted average cost of capital। एक्वायरर जब भी वैल्यू करेगा टारगेट को, एक्वायरर ने जब भी वैल्यू करना है टारगेट को, तो वो रिस्क एडजस्टेड वैक पे होता है। तो बेसिक असूल है, जिस बिजनेस के कैश फ्लोज हैं बिजनेस रिस्क होगा उसका, जिस बिजनेस के कैश फ्लोज हैं जिनको डिस्काउंट करने जा रहे हो बिजनेस रिस्क होगा उसका। और वैसे बात है, यहां पे बिजनेस रिस्क तो दोनों का एयरलाइन, बिजनेस तो दोनों का एयरलाइन ही है ना, दोनों का बिजनेस एयरलाइन ही है, तो यहां पे रिस्क एडजस्टेड वैक लिखना शायद जरूरी नहीं था। लेकिन चले, हमने कहा बिजनेस रिस्क तो है ही एक एयरलाइन, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क उस वैक में कौन सा आना चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क आपने बीटा में भी लोड कर, फाइनेंशियल रिस्क पे आपने वेटेड एवरेज भी करनी है, वो कौन सा होना चाहिए? तो फाइनेंशियल रिस्क लिया जाता है एक्वायरर का। एक्विजिशन के केस में जब एक्वायरर ने टारगेट को वैल्यू करना है, बिजनेस रिस्क होगा टारगेट का और फाइनेंशियल रिस्क होगा एक्वायरर का। वैक बनाते हुए हमें यह ख्याल रखना है। एक स्टेप इससे मैं और आगे जाऊंगा। फाइनेंशियल रिस्क एक्वायरर का कौन सा? प्री
या पोस्ट एक्विजिशन? द आंसर इज पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि यू आर प्लानिंग एक्विजिशन। एक्विजिशन जब प्लान कर रहे हो तो आप इन कैश फ्लोज को उस रेट पे डिस्काउंट करना चाहोगे जो रेट आपका एक्विजिशन के बाद प्रिवेल करेगा, क्योंकि ये कैश फ्लोज जब आपको मिलेंगे उस वक्त इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। ये कैश फ्लोज आपको जब मिलेगा तो यू वुड हैव बिकम मर्ज्ड कंपनी। तो आपको बिजनेस रिस्क लेना है टारगेट का, फाइनेंशियल रिस्क लेना है एक्वायरर का, और वो भी पोस्ट एक्विजिशन फाइनेंशियल रिस्क, कि भाई जब ये दोनों कंपनीज मिल जाएंगी तो फिर इनकी गियरिंग क्या दिखेगी। तो हम काम ये करते हैं, अब जाहिर बात इस पूरे सवाल में मार्क्स जो है वो बटे होंगे। मार्क्स इसके बटे होंगे कैसे कि कुछ मार्क्स आपके गियरिंग निकालने के हैं, कुछ मार्क्स आपके कॉस्ट ऑफ डेट के हैं, कुछ कॉस्ट ऑफ इक्विटी वैक वहां तक होंगे, फिर कुछ कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करके उनकी डिस्काउंटिंग के हैं, और आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी तक जाना है। तो ये कोई 8-10 स्टेप्स अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मार्किंग स्कीम यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। इसकी कोई बच्चा रिट्रीव कर सकता है इसकी मार्किंग स्कीम विद इन नेक्स्ट 1 मिनट? समर 21 क्वेश्चन नंबर 5, समर 21 की मार्किंग स्कीम। वहां पे क्यों करा रहा हूं, इधर क्यों ना करूं आपके सामने, लेकिन इधर मेरे लिए एक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कौन सी अटेम्प्ट? मार्किंग प्लान समर 21। यूजर नेम पासवर्ड कोई डाले बच्चा यहाँ पे आके अपना, मेरे पास तो नहीं है, यहाँ पे कोई सेव नहीं है। कोई बच्चे की हेल्प चाहिए यहाँ पे आए भाई, वॉलंटियर आ बेटा जरा। हाँ पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ है क्या बदल दिया? डेट ऑफ बर्थ है डी उसने लिखा था, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ? आप बोल रहे बेटा 9837 375 सी वसीम WM @100। जज़ाकल्लाह। हम हैं समर 21 क्वेश्चन नंबर 5। ये ले जी आपके सामने आ गई इसकी, जैसे मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी 3 नंबर, कॉस्ट ऑफ डेट 3 नंबर, वैक 1 नंबर, 7 नंबर आपके टोटल 20 नंबर का पार्ट वैक पे है। और फिर देखो मार्क्स कैसे बैठे हैं, मार्किंग स्कीम बार बार देखते रहा करो। रेवेन्यू 1 नंबर, यूं ये नंबर मिल रहे हैं। एक्सपेंडिचर अदर देन डेप्रिसिएशन 1 नंबर, टैक्स ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 नंबर, टैक्स सेव्ड ऑन कैपिटल लॉसेस 3 नंबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 नंबर, वर्किंग कैपिटल 2 नंबर, टर्मिनल वैल्यू 1 नंबर, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 नंबर, डिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेट 1 नंबर, वैल्यू ऑफ इक्विटी 1 नंबर। इतने आसान होते नंबर लेना, इसलिए आपको कहा जाता है कि सवाल पे ट्रैक पे चढ़ जाया करो, चलते जाया करो, मंजिल तक पहुंच जाया करो। ठीक है, मंजिल तक पहुंचते हो तो यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो, अगर आप उसको कंप्लीट कर देते हो ना टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आप कितने मार्क्स स्कोर कर जाते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप में ये 20 मार्क्स बटे हैं। और आई वोंट बी सरप्राइज कि एग्जामिनर यहाँ पे भी आपको फेवर दे रहा हो। इसके भी 2 हिस्से उसने किए हो कि आपकी थोड़ी बहुत गलती हुई तो 3 में से 1 या 2 नंबर दे दे। मतलब ये वो मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन है एग्जामिनर के पास कि भाई ठीक है यार, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 3 स्टेप में कॉस्ट आनी थी तो 2 स्टेप तो, क्योंकि इसमें बड़े बीटे शीटे लें तो भाई बीटे शीटे 2-3 तो स्टेप ठीक ले लिया, एक स्टेप में गलती हुई है, चलो 2 नंबर दे दो। ये डिस्क्रिप्शन आ गई। तो मुझे लगता है फाइंड द मार्क का तो मैं शायद डिस्क्रिप्शन यूज करूंगा यहाँ पे कि भाई ठीक है बच्चे को, क्योंकि मैं बच्चे को ये नॉलेज को डिफरेंट स्टेप पे गेज कर रहा हूँ, जज कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है 4 स्टेप में किया नहीं थी, बच्चे ने 3 स्टेप की ठीक किया, चौथे में गड़बड़ किया, चलो यार 1.5 नंबर 2 नंबर दे दो, डिजर्व करता है बच्चा। तो मैं तो इसको ऐसे देखूंगा, मुझे नहीं पता गाइडलाइन मार्कर को लहदा के दी हो कि भाई ठीक है तो देना, नहीं तो ना देना तो लहदा बात है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन कोई ना कोई एग्जामिनर के पास पार्ट्स की होगी। तो ये जनाब मार्किंग टीम की कहानी है। और अगले पार्ट में भी कुछ आप देख रहे हैं 5 नंबर का पार्ट है, उसके भी 3 हिस्से बनाए गए हैं। तो मार्किंग स्कीम पे कमांड रखा करें, देखते रहा करें इसको, ताकि आप
एग्जाम में जो आपको तरीका सिखाया गया है कि क्वेश्चन को कंप्लीट करना इज द की टू सक्सेस। अगर आपने पेपर कंप्लीट करने की, क्वेश्चन को कंप्लीट करने की हैबिट अपना ली, आदत डाली विद रीजनेबल एक्यूरेसी, यू विल इंशाअल्लाह पास। लेकिन अगर आप सवाल को पढ़ के घबराना शुरू हो गए और उसको हाथ ही नहीं लगाया, शुरू नहीं किया लिखना उस पर, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्वेश्चन के बेसिक आते हों, किसी कॉन्सेप्ट के बेसिक्स आते हैं, रीजनेबल प्रैक्टिस है, मुझे लगता है पास उससे भी हुआ जा सकता है। एक्सेसिव प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, बट बेस के बगैर आगे चलना मुश्किल है। जैसे हम बातें करते हैं कि बेसिक फार्मूलास को डिस्कस करते हैं, उसके बगैर आगे चलना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये कहानी हमारी सारी हो गई कंप्लीट। तो अब हम बात शुरू करते हैं फिर वैक से। पहले हम वैक के नंबर लेते हैं, फिर हम आगे कैश फ्लो फोरकास्ट करेंगे, उसके नंबर लेंगे। वैक के नंबर लेने हैं, तो वैक के लिए हमने कहा हमें एसआईएल का पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग चाहिए, एसआईएल की पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग चाहिए। फिर हमें बिजनेस का बीटा चाहिए एडजस्टेड फॉर एसआईएल गियरिंग, केई, केडी एंड वैक। तो हम पहले वैक की कैलकुलेशन की तरफ चलते हुए वैक का फॉर्मेट एस्टैब्लिश करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। वैक का स्टेटस हमारा होता है जी, हम सोर्सेज लाते हैं, हम कॉस्ट लाते हैं और मार्केट वैल्यू लाते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज हमारे पास एसआईएल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देख के जो हमें पता लग रहा है, सिर्फ दो ही सोर्सेज का जिक्र किया गया है। एसआईएल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किधर है भाई? इंफॉर्मेशन एसआईएल, पेड अप कैपिटल है और लोन है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। एसआईएल इंफॉर्मेशन एसआईएल में बताया गया है कि आपके पास इक्विटी है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। मार्केट वैल्यू की बात करें तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू आसानी से हमें पता लग रही है, 2 मिलियन शेयर्स हैं और 4300 का एक शेयर है, तो ये बने जनाब रुपीज इन मिलियन 8600, ठीक है जी। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो करंटली हैज 2000 मिलियन रुपीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, 18 ईयर्स मैच्योरिटी का। तो उन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू का उसका कोई जिक्र नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन विल अज्यूम कि भाई फिर ये बुक वैल्यू के बराबर ही रही होगी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन विल अज्यूम कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू, जो वैल्यू हमें गिवन है बुक वैल्यू, उसके बराबर ही रही होगी। अच्छा जी, बात यह है कि ये जो मैंने मार्केट वैल्यू उठाई है गियरिंग के लिए, ये तो करंट मार्केट वैल्यू है। हमने क्या कहा था? पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू हमें लेनी चाहिए। तो पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू के लिए हम पोस्ट एक्विजिशन जो शेयर्स हैं इक्विटी उसको देखते हैं और पोस्ट एक्विजिशन डेट जो है उसको देख लेते हैं। हमें ऑफर बताई गई है, शेयर ऑफर में 2 for 1 ऑफर है। आप एक WL के शेयर के बदले 2 शेयर्स SAL के दे रहे हैं। WL के टोटल शेयर कितने हैं? WL के टोटल शेयर कितने हैं? इंफॉर्मेशन ऑन WL 500.5 मिलियन, तो मतलब 1 मिलियन शेयर इसको इशू करने जा रहे हैं। तो लेट्स रेक्टिफाई दिस, मैं इसी को 3 मिलियन कर देता हूं। ये वैल्यू रिवाइज होकर कहां जाती है? मैंने कहा जी 3 मिलियन नहीं, 2 जमा 1 3 मिलियन, 2 मिलियन नहीं, 2 जमा 1 3 मिलियन होंगे। कितने जी? 12,900 12,900। और कंपनीज जब मर्ज होंगी तो जो लोन है WL का अवेलेबल है नोट नंबर 9 में। नोट नंबर 9 में W हैज 1000 मिलियन ऑफ लोन। तो जनाब 1000 मिलियन इसका है, तो प्लस 2000 करोगे तो ये आपका 3000 हो जाएगा। बाय द वे गियरिंग बदली नहीं है, गियरिंग रेशियो वही रही है, वैल्यूज बदली हैं। ये भी 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल रेशियो तो सेम रही। पोस्ट एक्विजिशन में SIL की गियरिंग वही है जो प्री एक्विजिशन में है, ठीक है, सेम गियरिंग ही मेंटेन रही है। वैल्यू सिर्फ 1.5 का मल्टीपल 1.5 का मल्टीपल लगा है, गियरिंग रेशियो इसकी नहीं बदली। बट प्रिंसिपली हमने जो बात सीखी है कि हमें वैक लेना चाहिए, पोस्ट एक्विजिशन वैक लेना है, पोस्ट एक्विजिशन हमने गियरिंग लेनी है। ठीक होगी जी, गियरिंग रेशियो हमारे पास आ गई। ये हमने मार्केट वैल्यूज डिटरमिन कर ली हैं जी। अब हम कॉस्ट की तरफ चलते हैं। उसमें पहले कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड में एस्टैब्लिश करता हूं। कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड में हम पहले यील्ड लेंगे। वर्किंग वन यील्ड इज RF प्लस क्रेडिट स्प्रेड। RF क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है कितना? SAL का RL, SAL का RF 3.75। क्रेडिट स्प्रेड क्या होगा? हमें क्रेडिट स्प्रेड चाहिए, AA रेटिंग, 18 साल मैच्योरिटी अवेलेबल है।
हमें 10 साल का अवेलेबल है या 30 साल का अवेलेबल है? वी हैव टू सिंपली इंटरपोलेट। 10 का अवेलेबल है, ये ग्रेजुअल सफर है 10 से 30 तक का, भाई 18 तक कहां पे पहुंचेगा? इट इज दैट मच सिंपल। तो इसको कैलकुलेटर देखो जरा कैसे होगा। 10 का आपको कितने है जी? 57। इसके बाद 10 से लेके ना बेटा 57 कितों आ गया? डबल ए रेटिंग है, 75 है। डबल ए रेटिंग हमारा 10 का 75 है, और 30 ईयर तक जाते जाते 103 पे चला गया। इसका मतलब ये सफर कितने सालों में तय हुआ? 75 से 103 का सफर 20 ईयर्स में, डिवाइड विद 20 करो, पर ईयर सफर आ गया। हमें कितने का चाहिए? 8 का। बिल्कुल ठीक है, लीजिए जी 8 का दिया। इसको 100 से डिवाइड कर दें, परसेंटेज बन गया। यील्ड, यील्ड है ना, बेसिस में है ना, तो बेसिस से परसेंटेज में ले जाना है। कितनी हुई जी? जी यील्ड बता दीजिए बेटा। 4.61 इज यील्ड, दिस इज यील्ड। और यहां से मैं अगर पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लूं, पोस्ट टैक्स केडी अगर लें, जो कि वैक के लिए हमें चाहिए होती है, तो वो होगा जी 4.61 इंटू 1 माइनस टी। क्या है जी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट? 3.27%। ये जी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ गई। और ये अगर देखें तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के कितने नंबर थे? 3 नंबर। ये 3 नंबर हमने यहाँ पे स्कोर कर लिए। कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास आ गई है, 3 नंबर हम इस वर्किंग से स्कोर कर चुके हैं। तो ये क्रेडिट स्प्रेड टेबल गिवन हो, इसकी मदद से कॉस्ट ऑफ डेट यील्ड बनाना और यील्ड से कॉस्ट ऑफ डेट बनाना, दैट्स इट। यही है बस, इतनी सी वर्किंग आपने सीख ली, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, करना क्या है यहाँ पे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। आपने ख्याल रखना है क्रेडिट रेटिंग क्या है, आपने ख्याल रखना है मेजोरिटी क्या है, और मेजोरिटी अगर टेबल में अवेलेबल नहीं है तो आप इंटरपोलेट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये इंटरपोलेशन की है। 10 साल का स्प्रेड ये है, और 10 साल से 20 साल का सफर करते हुए यहाँ तक जाता है, तो 8 साल का मजीद हमने वर्कआउट कर लिया। 10 साल का क्रेडिट स्प्रेड, 8 साल के पॉइंट्स कितने हैं? 18 साल का पॉइंट बन गए। जी जनाब, क्लियर होगी ये बात। वर्किंग 2 बना लें अब हम इसके लिए, जरा केई की कॉस्ट के लिए। वर्किंग 2 आनी है जी, केई आनी है कैपम से, RF 3.75, RM 6.85 माइनस 3.75 इंटू बीटा। बीटा के लिए आ जाए वर्किंग 2.1 पे। ये कौन सा बीटा लगना है यहाँ पे? जरा बीटा की कहानी कौन सुनाएगा? यहाँ पे कौन सा बीटा है? इंडस्ट्री सेम है और गियरिंग चेंज नहीं हुई, कौन सा बीटा उठाओगे? बेटा ये कंपनी का बीटा नहीं है, इंडस्ट्री का बीटा है। इंडस्ट्री का बीटा जिसकी गियरिंग SIL की गियरिंग से फर्क है, ये SIL का बीटा नहीं है। SIL का बीटा होता तो ठीक है, आप डाल देते यहाँ पे कि भाई SIL की गियरिंग सेम है तो बीटा सूटेबल है, डाल दिया यहाँ पे। सर ये इंडस्ट्री की गियरिंग है। जी इंडस्ट्री की गियरिंग है। इसको हम पहले अनवेयर करेंगे क्योंकि एयरलाइन वही एयरलाइन है तो वो वैसी रहने देगी। प्रॉक्सी के लिए सूटेबल है। ठीक है, उसके बाद फिर ये पोस्ट एक्विजिशन जो गियरिंग है इस पे हम गियर करेंगे और वो बीटा यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, हमने इंडस्ट्री का बीटा इक्विटी दिया गया है विच इज सुटेबल टू बिकम अ प्रॉक्सी बीटा। ठीक है, क्योंकि उसमें बिजनेस सेम है, जो SIL का बिजनेस है वही उसी इंडस्ट्री का उसने बीटा दे दिया हमें, लेकिन जो इंडस्ट्री की गियरिंग है वो हमारी गियरिंग से मैच नहीं करती। इंडस्ट्री की गियरिंग रेशो 50-100 है और हमारी गियरिंग रेशो 3000-12,900 है। ठीक है, डिफरेंट है। तो हमें इंडस्ट्री के बीटा को अनगियर करना है 50-100 से, उसको रीगियर करना है, एसेट बीटा जब बना के उसको रीगियर करना है इस रेशो पे, जो इक्विटी बीटा बनेगा उस पे हमने केई कैलकुलेट करनी है। तो स्टेप नंबर 1 में मुझे आप एसेट बीटा बताएं, स्टेप नंबर 2 में इक्विटी बीटा बताएं, और फिर हम केई की वैल्यू ले लेंगे। एसेट बीटा, एयरलाइन के बीटा को अनगियर करें, क्या आ रहा है?
जी बीटा एसेट क्या है जी? 1.81. 1.81 बीटा इक्विटी बनाएं, इसका वेरीफाई करें कैलकुलेशन बाकी हो, बीटा इक्विटी बनाएं इसका गियरिंग यूज करते हुए SIL की। टू 2.11 यहाँ यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगी KE। जी KE क्या आती है यहाँ से? 10.29%। तो इसको जाके हम यहाँ टेबल में डालें 10.29% और यहाँ से फिर आप बैक ले लीजिए। $8.97. 8.97%। इसको अप्रॉक्सीमेट ला लेते हैं डिस्काउंटिंग के लिए 9%। डिस्काउंटिंग पर्पसेस के लिए हमने इसको 9% ले लिया। यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो अजम्पशन हमारी रही है, हमने पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग निकालते हुए हमने शेयर वैल्यू सेम यूज़ की जो एक्विजिशन से पहले थी। प्रैक्टिकली शायद ऐसा ना हो। पोस्ट एक्विजिशन में मर्ज कंपनी की शेयर वैल्यू प्री एक्विजिशन से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दिस इज द नॉर्मल अजम्पशन जो कि हम इस तरह के सर्कमस्टांसेस में लेते हैं। ठीक है, हमने अज्यूम क्या किया है कि पोस्ट एक्विजिशन में भी 4300 ही उसकी वैल्यू रहेगी। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दिस थिंग, बट प्रैक्टिकली यू शुड नो कि ऐसा होता नहीं है, बदल जाती है वैल्यू सिनर्जीज की वजह से और सम अदर इफेक्ट्स की वजह से वैल्यूज बदल जाती हैं। अच्छा जी, हमारे पास वैक आ गया। अब हमें कैश फ्लोज फोरकास्ट करने हैं, फ्री कैश फ्लोज फोरकास्ट करने हैं और वहां से हम सर जो हमने बीटा की कैलकुलेशन की है उसमें जो हमने बीटा एक्विटी जो 2.45 था उसको जब अनगियर कर रहे हैं तो उसमें हम इक्विटी 100 और डेट 50 कंसीडर कर रहे हैं। 50 डेट 100 इक्विटी, क्योंकि जो क्वेश्चन बताया गया है डेट ओवर इक्विटी के फॉर्मूला से 50% है, मतलब डेट इक्विटी का 50% है। 50 डेट 100 इक्विटी। और जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनर के सोल्यूशन में इसको 50-50 लिया गया है, विच इज इनकरेक्ट। जी कोई और सवाल? अच्छा जी, अब हमें कैश फ्लोज की तरफ चलना है। कैश फ्लोज को जहां पे जो फॉर्मेट दिया गया है आपको फ्री कैश फ्लोज बनाने के लिए, वो प्रॉफिटेबिलिटी वाला फॉर्मेट है। मतलब आप PBIT जाएंगे, PBIT माइनस टैक्स करोगे और उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, इन्वेस्टमेंट लेस करोगे। ये है फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है। ठीक है जी, तो अब हम इसी के नीचे कैश फ्लोज मैं बना लेता हूं। इसी के नीचे मैं फ्री कैश फ्लोज ऑफ WL लूंगा और इनको मैं रिस्क एडजस्टेड वैल्यू के ऊपर हमने निकाला है उस पर डिस्काउंट करूंगा। फ्री कैश फ्लो जब हम बनाने चलते हैं तो उसने 1 से 4 तक की एक कहानी बताई है और उसके बाद 2025 ऑनवर्ड की कहानी थोड़ी फर्क है। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 करेंगे और 5 से परपेचुटी करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 से परपेचुटी। ये हमारे जनाब कैश फ्लोज का ब्रेकअप रहेगा, पीरियड रहेगा जिसमें मैं कैश फ्लोज फोरकास्ट करने हैं। (2021, 22, 23, 24 एंड 25 से
परपेचुअली। ये सारा डाटा रुपीज़ इन मिलियन में हम ले लेंगे और जिस तरह के हमें डाटा दिया गया है हम रेवेन्यू फोरकास्ट करेंगे, हम एक्सपेंडिचर अदर देन डेप्रिसिएशन फोरकास्ट करेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लाएंगे। इसके बाद हमें पीबीआईटी मिल जाएगा। पीबीआईटी पे हम टैक्स चार्ज करेंगे। क्या रेट है टैक्स का? 29%। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, इसमें लेस करेंगे कैपेक्स, इसमें लेस करेंगे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। यहां से हमें मिलेगा फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। इसको डिस्काउंट करेंगे वैक पे, हमने 9% निकाला से ऊपर हमने वर्कआउट किया हुआ है, और यहां से लाएंगे पीवी। पीवी को सम करेंगे तो मिलेगा वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसमें से लेस करेंगे वैल्यू ऑफ डेट, हमें यहां से मिलेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ डेट मुझे ऑलरेडी पता है 1000 मिलियन है, और ये मैंने लिखने का एक नंबर कमा लिया, मार्किंग सी अगर आपने पढ़ी है तो। उन्होंने बताया जो भी वैल्यू ऑफ बिजनेस आया उसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करने का एक नंबर है, तो ये एक नंबर मैंने कमा भी लिया इस टेबल से। तो मार्क्स कमाने इतने आसान है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मेट कौन सा जो हमने इलस्ट्रेशन में कई दफा बनाया हुआ है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, वही बेसिक फॉर्मेट है जिस पे हमें सिर्फ डाटा अरेंज करना है। इस फॉर्मेट में कोई चीज अगर समझ नहीं आती पूछिए आप। रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर लेस किया, कैश एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन लेस किया, पीबीआईटी आ गया, पीबीआईटी में से टैक्स लेस करना है, डेप्रिसिएशन ऐड पैक करनी है, और कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस करनी है। ये नॉर्मल हमारी इक्वेशन है जो हमने पढ़ी थी फ्री कैश फ्लोज फ्रॉम अकाउंटिंग डाटा के नाम से। फ्री कैश फ्लोज फ्रॉम अकाउंटिंग डाटा के नाम से इक्वेशन हमने पेज 313 पे पढ़ी हुई है। डिटो मैंने उसको कॉपी किया, ठीक है। पीबीआईटी लेस टैक्स एड डेप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैपेक्स, सब कुछ यही जो चीजें हैं पेज 313 से मैंने उसी इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई किया है। फर्क सिर्फ यह है कि पीबीआईटी के तक आने के लिए ये तीन वैल्यूज हमें लेनी पड़ी है, वो इक्वेशन पीबीआईटी से शुरू हो रही थी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? फ्री कैश फ्लोज टू फर्म आएंगे यहां से, क्योंकि यहां पे ना इंटरेस्ट लेस हुआ ना डेट रीपेमेंट्स को लेस हुई। फ्री कैश फ्लोज टू फर्म को वैक पे डिस्काउंट करेंगे, और पीवी वैल्यू ऑफ बिजनेस देगी, वैल्यू ऑफ बिजनेस वैल्यू ऑफ डेट लेस करें तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। डिटरमिन द वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूएल इक्विटी शेयर। अच्छा जी, रेवेन्यू पे बात करें तो बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन है। उसने पिछले साल का रेवेन्यू में दिया है 2970.8 और रेवेन्यू की ग्रोथ उसने बताई है 2.5% पर एनम। तो हम करेंगे क्या, 2970.8 इंटू 1.025 रेस्ट पर एन कर दो, खत्म होगी बात, ऐसा ही है ना। तो मेरे पास हर साल का रेवेन्यू आ गया, एक नंबर इसका मिल जाएगा। ये यहाँ पे चार वैल्यूज, और पांचवा रेवेन्यू तो ग्रोथ नहीं है ना, आखिरी साल तो कोई ग्रोथ नहीं है। पांचवा रेवेन्यू तो वही होगा जो शायद 2024 का है। तो बहरहाल शुरू कीजिए 2021। एक डेसिमल तक उसने डाटा दिया तो हम एक डेसिमल तक लिखेंगे 2021 का रेवेन्यू। $2970.8 इंटू 1.025 3045.1 एक डेसिमल तक रहे। उसने एक डेसिमल लिखा है, हमको दो डेसिमल लगा के अपनी एनर्जी दया करें जी। इंटू 1.025 3121.2 इंटू 1.025 3199.3 इंटू 1.025 ना 31 पे तो पहले पहुंचो बेटा, 3279.3 और यहां पे मेंटेन रहेगा 3279.3, क्योंकि उसने कहा कि 2025 ऑनवर्ड्स। नोट नंबर 2, देयर इज नो रेवेन्यू और कॉस्ट इन्फ्लेशन फ्रॉम 2025 एंड ऑनवर्ड्स। तो यहां से यहां पे भी कोई इन्फ्लेशन नहीं है, ऑनवर्ड भी कोई इन्फ्लेशन नहीं। एक नंबर डेप्रिसिएशन सेम अंदाज में 2400 इंटू 1.02 रेस्ट पावर एन। तो जनाब पहला एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, पहला जी 2448.0 जी। नेक्स्ट 2496.97.0 जी। नेक्स्ट 2546.9 0.9। नेक्स्ट
नेक्स्ट सेम 2597.8। इसका डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन की हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी। अगर मार्किंग स्कीम याद हो तो उसने डेप्रीसिएशन के नंबर दिए में हमें 3। उसने टैक्स सेविंग और डेप्रीसिएशन लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल ये डेप्रीसिएशन 3 नंबर, ये डिफरेंट अंदाज होता है, हम इसको इस अंदाज से नहीं प्रेजेंट करें। तो बहरहाल 3 नंबर की डेप्रीसिएशन है। इसके लिए मैं आगे वर्किंग नंबर 1, 2 पहले बना चुके थे, वर्किंग 3 बनाते हैं जी हम। हमें उसने बाय द वे कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, मैं वो डाल दूं यहीं पे। कैपेक्स उसने बताया 2021 का 500 है, 2022 का 400, 23 300, फिर 200। इसके बाद के लिए है नोट नंबर 7 फॉर द ईयर 2021 to 24 एडिशनल वर्किंग कैपिटल, नहीं सॉरी, नोट नंबर 8 नहीं, note number 5 for 2025 and each year thereafter annual capital allowance on aircraft is equal to cash flows from tax saved on capital allowances। मतलब डेप्रीसिएशन की वजह से जितनी टैक्स सेविंग मिलनी है उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है। इसका मतलब आपने यहां पे ना डेप्रीसिएशन लेनी है ना यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लेना है। डेप्रीसिएशन की वजह से जो टैक्स सेविंग मिलनी थी उतनी ही यहां पे आउटफ्लो हो जानी, क्योंकि यहां पे देखो डेप्रीसिएशन जो हम यहां लेस करते हैं वो सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए लेस करते हैं ना। यहां लेस किया दोबारा ऐड कर दिया, यहां पे सिर्फ टैक्स सेविंग का बेनिफिट लेने की, एक जगह लेस किया, टैक्स कैलकुलेट किया, फिर ऐड कर दिया। तो इसको हमने सिर्फ टैक्स सेविंग का बेनिफिट इनकॉर्पोरेट करने के लिए डेप्रीसिएशन को यहां ट्रीट कर रहे होते हैं। उसने कहा जी टैक्स सेविंग का बेनिफिट बराबर है कैपिटल अलाउंसेस के, तो भाई आप ये डेप्रीसिएशन को सेव करो, ना इधर डेप्रीसिएशन लेस करोगे ना इधर ऐड करोगे, और ना ही आप कैपिटल एक्सपेंडिचर लोगे, जीरो है। हम डेप्रीसिएशन के लिए वर्किंग 3 पे जाते हैं, और डेप्रीसिएशन के लिए उसने में नोट जो दिया हुआ है नोट नंबर 4 है। 21 से 24 तक कैपिटल अलाउंसेस और एयरक्राफ्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 10% पर एनम on reducing balance basis. The tax WDV on 1st December 2020 is 9,000 million. तो जनाब 9,000 मिलियन का WDV है, वहां से बात हम शुरू करेंगे। हम वर्किंग बनाते हैं जी, हम वर्किंग कौन सा नंबर बनाना था, वर्किंग 3 था, वर्किंग 3 बनाते हैं जी हम। और हमारे पास 21 से लेके 24 तक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन का हमारा अंदाज रहेगा 2021, 2022, 2023, 2024। हमें ओपनिंग WDV पता है 9,000, फिर हमें एडिशंस पता है 2021 की 500। तो जनाब आपकी जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी 9,500 की, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 950 बनी, ये लेस कर दो, तो ये जनाब आपकी क्लोजिंग WDV आ गई 855, और ये आपकी अगली ओपनिंग WDV बन गई। फिर एडिशन है 400 का, 300 का, 200 का, तो 400 का एडिशन हुआ तो कितना बन गया, 8550 था, 8550 था, 8550 था, 8950, डेप्रीसिएशन 895, WDV क्लोजिंग 8055, 8055 प्लस 300 8355, डेप्रीसिएशन 835.5, WDV 7519.5, 7519.5 प्लस 200 7719.5, और डेप्रीसिएशन 7712 कर देंगे। लीजिए WDV 6948, लीजिए जी, ये हमारे पास आ गई डेप्रीसिएशन की वर्किंग। अब इस डेप्रीसिएशन को अपने ऊपर प्लेस करना है, डेप्रीसिएशन को प्लेस करना है, तो डेप्रीसिएशन को लेके हम यहाँ पे लाते हैं जी। लीजिए जी, पहली डेप्रीसिएशन 950, दूसरी डेप्रीसिएशन 895, तीसरी डेप्रीसिएशन 835.5, चौथी डेप्रीसिएशन 772। लीजिए जी, यहाँ से PBIT बताइए क्या आ रहा है, ये तो लॉस आ रहा है। पहले साल तो लॉस आता नजर आ रहा है मुझे, बोलो जी क्या लॉस है।
लॉस है जी 352.9, नेक्स्ट ईयर फिर लॉस है कितना जी 270.8, नेक्स्ट ईयर फिर लॉस है 183.2, नेक्स्ट ईयर फिर लॉस है, और 25 से परपेचुटी इज प्रॉफिट 699 पॉइंट, देखो जरा 681.5। टैक्स पेमेंट ऑब्लिक सेविंग, जहाँ पे लॉस है वहाँ पे सेविंग लेंगे ना, तो लीजिए जनाब। कितने आज सेविंग 102.3 सेविंग है, नेक्स्ट जी 78.5, 53.1, 26.3, 197.6 नेगेटिव पेमेंट। टैक्स आ गया, डेप्रीसिएशन जो ऊपर लेस की थी नीचे ऐड बैक कर दें, 950, 895, 835.5, 772। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्जामिनर से डिफ़र किया है, इस पे उसकी हर प्रेजेंटेशन भी फ़र्क है, एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन भी फ़र्क है। उसने कैश प्रॉफिट अलहदा कैलकुलेट किया है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अदर देन डेप्रीसिएशन, कैश प्रॉफिट निकाला है, कैश प्रॉफिट पे टैक्स पेमेंट ली है और डेप्रीसिएशन पे टैक्स सेविंग ली है। लेकिन उसने ये काम करते हुए जो चीज़ की है कि कैश पेमेंट, कैश प्रॉफिट पे जितना टैक्स बन रहा है, कैश प्रॉफिट पे जितना टैक्स बन रहा है, डेप्रीसिएशन पे टैक्स सेविंग उतनी ही ली है। हमने तो नेट में बेनिफिट ज्यादा उठा लिया ना, मैंने तो यहां पे नेट में रिटर्न ले लिया। मतलब यहां पे अगर देखो जो एग्जामिनर ने ट्रीटमेंट की है, आप इधर से जरा कैश प्रॉफिट निकालो कितना है, सिर्फ इसका एनालिसिस करो, कैश प्रॉफिट कितना है 0.1, इस पे अगर टैक्स पे करना पड़े 29% कितना है 173.2, और ये डेप्रीसिएशन पे टैक्स सेविंग कितनी बनती है 275.5। मतलब डेप्रीसिएशन की वजह से हमारी टैक्स सेविंग 275.5 है, लेकिन हमारी टैक्स लायबिलिटी 173 है। मैंने तो नेट बेनिफिट ले लिया, इसका नेट लोगे ना वो जो 102 आ रहा है, मैंने तो बेनिफिट शो कर दिया। एग्जामिनर ने कहा बेनिफिट नहीं लेना, मैंने इसको नॉक ऑफ ही करवाना है, बाकी इज नॉट अवेलेबल। जबकि मेरे हिसाब से दिस इज हाउ नॉट हाउ वी शुड बी डूइंग, क्योंकि हम WL को SIL में एब्जॉर्ब करने जा रहे हैं। तो ये कंपनी जो है WL जब SIL में एब्जॉर्ब होगी तो इसके पास अगर कोई टैक्स लॉसेज हैं तो वह SIL के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट क्लेम हो जाएंगे। तो एज SIL आई शुड टेक फुल बेनिफिट। और यहां पे मैं फिर एक बात कर दूं कि ये जरूरी, मैं ये नहीं कहता कि आई कैप ये गलती है, ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन की मद में भी आ सकता है। ठीक है, पहले तो जैसे हम कहते हैं वो 50-50 गियरिंग रही, वो तो गलती है क्योंकि उसने फार्मूला लिखा हुआ है डेट ओवर इक्विटी है 50% है, वो गलती है। बट ये आपका ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव सोल्यूशन की मद में भी आ सकता है। कभी आप अजूम कर लो कि भाई हमारे पास, हमने क्योंकि हमने वैसे ही कहा कि वैल्यूएशन तो आर्ट है, तो आप अपने बेनिफिट के लिए सूटेबल अजम्पशन से वैल्यूज को आल्टर कर सकते हो। जैसे ये अजम्पशन, अगर आप आई अजम्पशन लो तो मैंने ज्यादा बेनिफिट इनकॉर्पोरेट किया दिया, आई विल कम अप विद द हायर वैल्यू, आई विल कम अप विद द हायर वैल्यू, क्योंकि मैंने बेनिफिट ले लिया है, उसने बेनिफिट नहीं लिया, बेनिफिट नहीं है। अगर टैक्स लॉस आ रहा है तो कोई सेविंग नहीं, बेसिकली ये कहानी है उसकी कि यहां पे टैक्स लॉस आ रहा है जीरो कर दो, टैक्स लॉस आ रहा है जीरो कर दो, उसने ये किया हुआ है। टैक्स लॉस आ रहा है जीरो कर दो, टैक्स प्रॉफिट है यस पेमेंट डाल दो। आई कैप ने ये किया हुआ है, मैंने कहा भी लॉस है तो उस पर सेविंग ले लो। दिस इज ओनली डिफरेंस जो हमने किया हुआ है। प्रेजेंटेशन उसने जैसे मर्जी की, बट डिफरेंस यही है कि जी लॉस है तो वो लॉस हमारा क्लेमेबल नहीं होगा, हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। जबकि मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर सूटेबल अजम्पशन है। उस अजम्पशन की अपनी लॉजिक हो सकती है, वी वांट टू कीप वैल्यूएशन एट द लोएस्ट लेवल, ताकि हमने बाहर से बैठना टेबल तो उसको हम लो वैल्यू दिखा सकें।
उसकी अपनी जस्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन ये प्रिंसिपली राइट ट्रीटमेंट शायद मुझे लगता है शायद ये है, हमें लॉस लेना चाहिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अब क्या रह गया? सिर्फ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हम क्या करें? वर्किंग कैपिटल उसने बड़ा सिंपल सा बताया हुआ है, वर्किंग बनाए ना बनाए वैसे भी कर सकते हैं हम कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसने कहा जी नोट नंबर 7 में फॉर ईयर 1 to 4 एडिशनल वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 10% ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर दैट ईयर विल बी रिक्वायर्ड। जिस साल रेवेन्यू में इजाफा आया उस साल एडिशनल रेवेन्यू का 10% हमें चाहिए होगा। तो जनाब जैसे पहले साल में कितना इजाफा आया, दिस माइनस दिस, उसका 10%। तो आप ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके डाल दें तो आई कैप को एक्सेप्टेबल होती हैं वैल्यूज, ये कैलकुलेशन। तो बताइए जनाब कितना इजाफा आया वर्किंग कैपिटल का? 7.4। जी नेक्स्ट ईयर सेल्स में इजाफा 10%। मैथमेटिकली होता तो कर दो, मैथमेटिकली ठीक है, मेरा रिजल्ट ऐसे ही आएगा। बोलो क्या आता है जरा? 1.025 कर रहे हैं, 7.4 आ गया तो सेल्स 2.5% से बढ़ी है तो वर्किंग कैपिटल भी 2.5 से बढ़ेगी ना। 7.4 इंटू 1.025 7.6 कर दिया, इंटू 1.025 7.8 इंटू 1.025 8। इसके बाद उसने कहा ऑनवर्ड 10 हो जाएगा। ये उसने क्वेश्चन बताया हुआ है कि 25 ऑनवर्ड ये रिक्वायरमेंट हमारी 10 पे चली जाएगी, नोट नंबर 8 में बताया हुआ उसने। लीजिए जी, ये आपका फ्री कैश फ्लो हो गया, इसको आप वैक पे डिस्काउंट करेंगे और वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगी, वहां से वैल्यू ऑफ एक्विटी ले लेंगे। ठीक है जी, इसके आगे का काम हो गया, इसके आगे तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही जी। कैश फ्लो हमारे पास है, डिस्काउंट रेट हमारे पास है, पीवी का सम लेंगे, वैल्यू ऑफ बिजनेस होगी, वैल्यू ऑफ डेट माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्विटी आ जाएगी। ये पार्ट तो हमारा यहां से कंप्लीट होता है। पार्ट बी देखें जरा इसका। जी जनाब, पार्ट ए में यहां पे कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछिए, सो दैट वी मूव टुवर्ड्स पार्ट बी। पहले मतलब हम इस पे जो डिस्काउंट रेट लेंगे वो 9% जी बेटा, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 से परपेचुटी है। फ्यूचर कैश फ्लोज को हमें डिस्काउंट करना है। 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दी गई थी, हमने 2021 ऑनवर्ड फोरकास्ट किया फ्यूचर और उसको डिस्काउंट करेंगे। जी एनी क्वेश्चन? किसी जगह कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। अच्छा, इसका पार्ट बी हमने अभी पढ़ा नहीं था, अब हम पार्ट बी पढ़ते हैं, उसके इश्यूज को फिर एड्रेस करते हैं। पार्ट बी, एज अ रिजल्ट ऑफ द मर्जर द डायरेक्टर्स ऑफ SIL एक्सपेक्ट टू मेक कॉस्ट एफिशिएंसीज इन द न्यू ग्रुप विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 3000 मिलियन। ये वो फैक्ट आ गया जो मैंने ऊपर आपसे कहा था, अजम्पशन ली हमने अजम्पशन ली थी कि इक्विटी वैल्यू में कोई चेंज, शेयर में वैल्यू में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअली आती हैं। उसने पार्ट बी में उसने जिक्र किया हुआ है। पार्ट ए में हमने अज्यूम कर लिया था कोई चेंज नहीं है, हमने पोस्ट एक्विजिशन गेयरिंग बना के सवाल कर दिया। अब वो यहां पे कहते हैं अज्यूम करो मर्जर हुआ और जो बेनिफिट है मर्जर का वो प्रेजेंट वैल्यू में 3000 मिलियन है। इसका मतलब है कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 3000 का इजाफा, इंक्रीज आएगा। Required, compare the values of SIL and WL shareholdings before and after the merger to determine if their shareholders are likely to accept the terms of the share for the share exchange offer proposed by SIL. SIL और WL की शेयर होल्डिंग बिफोर एंड आफ्टर मर्जर, वैल्यू ऑफ होल्डिंग बिफोर एंड आफ्टर मर्जर बताओ और देखो कि क्या ये जो डिसीजन है, ऑफर है, शेयर ऑफर है, ये एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। इफ देयर शेयर होल्डर्स आर लाइकली टू एक्सेप्ट द टर्म, क्या ये दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर जो ऑफर है 2 for 1 है ना, क्या उनको ये ऑफर एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, इस पे कमेंट करो।
अच्छा जी, ऑफर को एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, इसका असूल बड़ा सीधा सा है। आप देख लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैल्यू ऑफ इक्विटी जो हर इंडिविजुअल कंपनी के ग्रुप के शेयर होल्डर के पास है, वो क्या है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हम लेते हैं, कि हमारे पास प्री एक्विजिशन वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है। हमारे पास SIL की तो है, WL की मैं डंडी मार गया था, हमने कैलकुलेट ही नहीं की पार्ट ए में ना, ये मैं कैलकुलेट करनी थी ना यहाँ पे, ये मैं छोड़ गया था, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स अज्यूम इट इज़ 5000, ठीक है। सारे से ऊपर से लेट्स अज्यूम ये 5000 आई, पार्ट बी के लिए मैंने अज्यूम कर लिया 5000 है। तो जनाब असल में जो आगे वो लेंगे, इधर 8600 ली, इधर 5000 ली, तो टोटल कितनी है 13,600। फिर इसमें आई सिनर्जी 3000 की टोटल में। तो जनाब पोस्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी बन गई 16,600। इसका ब्रेकअप 2/3 1/3, ऐसा ही है ना। कितने शेयर्स इन इशू थे पहले, बाद में कितने हो गए। 2 मिलियन शेयर्स इन इशू थे SIL के, WL के शेयर होल्डर को 1 मिलियन और इशू कर दिया। टोटल SIL के हो गए पोस्ट एक्विजिशन में 3 मिलियन शेयर, जिनमें से 2 मिलियन SIL के, 1 मिलियन WL के। तो जनाब इसके 2/3 1/3 इसे बना दो, इसके 2 इससे बना दो इसके, तो 2/3 कितना बना इसका 16,600 का 11067, और 1/3 इसका कितना बना 5533। तो जनाब यहां से आप वर्कआउट कर सकते हैं इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। ये रुपीज इन मिलियन में सारा डेटा हम देख रहे हैं। तो ये जनाब कितना है 28.69। क्या बोल रहे हो, परसेंटेज बोल रहे हो, चलो परसेंटेज बोल दो, 28.69% लीजिए जी। और इसका बोलो 10.66%। बेसिकली दोनों शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा है। तो हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़ दोनों शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा है, इन वैल्यूज़ के बेसिस में अगर कमेंट करूं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल फ़ायदा है उसका ज़्यादा हिस्सा एक्वायरर के पास जा रहा है, ठीक है। बेसिकली एक्विजिशन में सिनर्जीज को टारगेट किया जाता है और निगोशिएशन में उस सिनर्जी का शेयर को निगोशिएट किया जाता है। तो जो ऑफर SIL ने दी है, जो हमने वैल्यूज़ निकाली, हो सकता है ये वैल्यू 5000 ना होती, 5700 होती, मुझे क्या पता, जो वैल्यूज़ यहाँ पे निकल रही हैं उसके मुताबिक लग रहा है कि लाइन्स शेयर ऑफ सिनर्जी जो है वो SIL लेके जा रहे हैं। आल्दो WL के पास भी उनको प्रीमियम मिल रहा है, बट दे मे आर्गू टू डिमांड हायर प्रीमियम। ये तो हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं इस ऑफर को, क्योंकि इनको तो बहुत ज़्यादा फायदा नजर आ रहा है, इनके लिए भी एक्सेप्टेबल है बात। लेकिन दे मे डिमांड हायर प्रीमियम, देखिए इसको जरा 28 को नीचे ले आओ 22 पे, हमारा भी को 15 17 18 पे चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2 for 1 की जगह 2.2 for 1 शेयर दे दो मैं, इन अदर वर्ड्स थोड़ी सी रेशो हमारी बढ़ा दो, तो रेशो बढ़ा दोगे तो शेयर बढ़ जाएगा। यहाँ ये वैल्यू जैसे मैंने 5000 लिया, हो सकता है 5000 नहीं होती है, 4500 होती तो प्रीमियम को आ जाता है। बट एनीवेज मैं तो जो वैल्यूज आई हैं उसके हिसाब से कमेंट दे रहा हूँ कि दे विल एक्सेप्ट हैप्पीली, इनको भी फायदा है, लेकिन दे मे डिमांड स्लाइटली हायर प्रीमियम, दे मे ट्राई टू नेगोशिएट स्लाइटली हायर प्रीमियम। सर WL को पता होगा कि SIL इतना वो गेन कर रहा है, मतलब इतना परसेंट जो इस बेसिस क्या WL को पता होगा कि SIL को इतना फायदा हो रहा है, तो दे विल डू देयर ओन वैल्यूएशन, वो अपनी वैल्यूएशन वो भी करेंगे, ठीक है। दे मे नॉट कम विद एग्जैक्टली द सेम नंबर, लेकिन दे हैव देयर ओन वैल्यूएशन एंड दे विल हैव देयर ओन एस्टिमेशन। लेकिन हमने तो इसी वैल्यू के बेसिस पे कमेंट करना है, क्योंकि हमसे तो कहा है जो आप वैल्यू बनाते हो इसकी बेसिस पे बताओ दोनों के शेयर होल्डर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, हमसे तो यही पूछा गया है। तो इसकी बेसिस पे हमारा कमेंट है, दे विल बी हैप्पीली गिविंग गो हेड, दे मे एक्सेप्ट इट बट वुड लाइक टू नेगोशिएट अ स्लाइटली हायर प्रीमियम, ठीक है जी जनाब। एनी क्वेश्चन? जब भी
हम ये अक्सर एग्जामिनर पूछता है, अभी शायद आगे हम एक और सवाल भी देखेंगे, उसमें भी ऐसे उसने पूछा हुआ है कि बताइए शेयर होल्डर्स इस बिड को, इस वैल्यूएशन ऑफर को कैसे परसीव करेंगे। असूल बड़ा सीधा सा है, अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा हो रहा है, वो इजाफा आप ऐसे गेज कर लो या किसी और तरह गेज कर लो, ठीक है। अगर शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा है तो दे विल सपोर्ट द ऑफर, दे विल सपोर्ट द मर्जर, लेकिन अगर शेयर होल्डर वेल्थ में कमी है तो दे विल अपोज द मर्जर। ये बेसिक प्रिंसिपल है। हमने अगला जो सवाल देखना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, तो उसमें भी ये उसने वैल्यूएशन हमसे मांगी हुई है कि बताओ जनाब ये ऑफर को बायर और सेलर के शेयर होल्डर कैसे देखेंगे। ये नहीं क्वेश्चन इस सवाल में जी, सुपर स्काई इंटरनेशनल एयरलाइन लिमिटेड, ये एक रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था सीटी के बाद, लेकिन जो अगला सवाल करने जा रहे हैं वो फिर थोड़ा ज़रा धुआंधार सवाल है जो हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये रीऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये सिंपल एक सवाल था, ठीक है, सिंपल एक्विजिशन का केस था। लेकिन जो हम क्वेश्चन नंबर 14 अब देखेंगे दैट इज अगेन अ रीऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रीऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, हमारा प्लान है जी क्वेश्चन नंबर 14, ट्यूलिप टेक्सटाइल समर 18, विंटर 17 की इमीडिएट नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप देख सकते हैं समर 18 आया था। हमने ये कल सवाल किया था ना, अब ये करने जा रहे हैं, इमीडिएट नेक्स्ट अटैम्प्ट का सवाल है, ठीक है। उससे आगे फिर सवाल है, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया था, लेकिन ये जैसे रीऑर्गेनाइजेशन में सवाल आया था, दिस वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आई कैप की हिस्ट्री में। रीऑर्गेनाइजेशन में सवाल आई कैप जनरली नहीं देता था, वैल्यूएशन के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस सवाल ने आगे ट्रेंड चेंज किया था। और इसके सवाल के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट अटैम्प्ट में फिर रीऑर्गेनाइजेशन आया, क्योंकि पता लगा पेपर सेटर को कि बच्चा रीऑर्गेनाइजेशन पे पैदल है, तो उसने दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन पे सवाल दिया और फिर उसने रीऑर्गेनाइजेशन पे एक ट्रेंड सेट किया कि भैया रीऑर्गेनाइजेशन पे सवाल आया करेंगे ओकेजनली, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो हम टीटीएल का सवाल देखेंगे, ये भी रीऑर्गेनाइजेशन पे है। ठीक है, 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम शुरू करते हैं इस सवाल को। अच्छा जी, एक और रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14 पेज 364 पे, ट्यूलिप टेक्सटाइल लिमिटेड समर 18 का। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं जी, 25 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Evaluate whether the proposed acquisition would be beneficial for the existing shareholders of TTL and BTL। इसने डायरेक्ट ही वो रिक्वायरमेंट दे दी जो पिछले सवाल का पार्ट बी था। पार्ट ए किया था, उसको पार्ट बी पे गए थे, तो पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन पार्ट बी में यूज हुई थी ना, वैल्यूएशन ऑफ WL, तो इसने दिया ही सीधा पार्ट बी है। खुद ही फैसला कर लो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, निकाल लेना। ये उससे आप समझिए एक से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है ये कहानी रीऑर्गेनाइजेशन की। SIL का सवाल था सिंपल वैल्यूएशन का, ये रीऑर्गेनाइजेशन की कहानी है, तो और मज़ेदार रीऑर्गेनाइजेशन है, उतनी आसान नहीं है जितनी कल आपने सीटी की देखी थी, ठीक है। ये उससे ज़रा डिफरेंट और रीऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ट्रांजैक्शन जो की जा रही हैं वो ज़रा डिफरेंट है, एक्विजिशन भी है और रीऑर्गेनाइजेशन भी है। ट्यूलिप टेक्सटाइल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट टू कस्टमर इन USA एंड यूरोप। टेक्सटाइल मिल एक्सपोर्ट बिजनेस में है। इन अ रीसेंट मीटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स has approved an expansion plan which envisages introducing local sales by acquiring retail shops with the brand name Virsa। Acquisition करना है local retail shops को का एक brand name Virsa। In this regard, a company named Blossom Textile Private Limited (BTL) has been identified for acquisition। Acquisition target आ गया जी। BTL has 2 divisions। जो कार जिसको करना है उसके 2 डिवीजन है, वो दैट इज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन एंड रिटेल बिजनेस डिवीजन। मेरा कहानी सुनिएगा ध्यान से जरा। प्लान इज टू एक्वायर BTL, डिस्पोज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन एंड यूज द रिटेल बिजनेस डिवीजन फॉर द सेल ऑफ TTL प्रोडक्ट। मतलब TTL ने BTL जो कि एक पोर्टफोलियो है उसको लेना है, उसमें से एक हिस्सा बेच देना है, दूसरे हिस्से को मर्ज कर लेना है अपने अंदर। क्योंकि TTL खुद एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको BTL के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। वो BTL को एज अ ग्रुप खरीदेगी, लेकिन उसके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को डिस्पोज ऑफ कर देगी और उसका जो रिटेल बिजनेस है उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। TTL खुद पोर्टफोलियो बन जाएगी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल बिजनेस। आफ्टर सेवरल मीटिंग्स BTL shareholders have finally showed their inclination to sell BTL if TTL offers them 5 ordinary shares of TTL for every 7 shares of BTL। 5 for 7 offer है, then they can consider। Subsequently, a due diligence exercise has been carried out। TTL CFO has summarized the key information as follows: extracts from the latest financial statements,
ऑफ टीटीएल एंड बीटीएल। टीटीएल और बीटीएल की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रुपीज इन मिलियन में सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बैंक लोन, रीपेबल आफ्टर 5 years, 10% बैंक लोन है दोनों का। 30% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बीटीएल पर्टेन्स टू रिटेल बिजनेस डिवीजन। बीटीएल जिसको आपने खरीदना है उसके 30% नेट एसेट्स रिटेल बिजनेस से बिलोंग करते हैं, मतलब 70% नेट एसेट्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करते हैं। BTL's textile manufacturing division can be disposed of immediately at around 1.5 times of its net asset value. 1.5 times of its net asset value, which is 70% of total net assets. ठीक हो गया? BTL has assessed carry forward losses of 1500 million. BTL को आप acquire करोगे तो carry forward tax losses भी मिलेंगे. Carry forward tax losses they result in tax savings. Tax savings देते हैं आपको फ्यूचर में. Other information, TTL's board has planned to maintain the proportion of debt to equity ratio in terms of market value at the same level as it was before acquisition. मतलब post acquisition में वही gearing रहनी है TTL की जो अभी है. Annual savings of 70 million are expected to be achieved as a result of synergies. Annual savings, synergies due to acquisition and are expected to continue till perpetuity. However, TTL would have to make one-time payment of 35 million immediately to the redundant staff. ये acquisition के ऊपर ये खर्चा भी आएगा. ये सेविंग है 70 मिलियन पर एनम परपेचुटी में और एक वन ऑफ की 35 मिलियन की पेमेंट भी है. द सेल ऑफ विरसा इन द फर्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 1000 मिलियन which is estimated to grow by 10% per annum in the second and third year. Thereafter the sales growth would normalize at 5%. First year, second year, third year, then fourth year पे normalize हो गया 5% पे आके. The profit before tax is expected at 20% of the retail business. Depreciation relating to retail business division would stay at constant 25 million. Currently, TTL and BTL have equity beta 1.1 and 0.9 respectively. The risk-free rate of return is 7% and market premium, this is premium, 6%. Asset beta of the combined entity may be taken as the individual company's asset beta weighted in proportion of the market value of their equity. Combined company का एसेट बीटा. अच्छा, एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 30%. द शेयर्स ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज आर बीइंग ट्रेडेड एट पी रेशियो ऑफ 12. बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर वुड बी इनफ प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ टीटीएल टू अब्सॉर्ब ऑल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ बीटीएल इन द फर्स्ट ईयर. मतलब ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है ना, ये इसमें पहले साल में भी टैक्स सेविंग ले लोगे आप, सारी की सारी टैक्स सेविंग पहले साल में ले लोगे आप. ये है जी कहानी. और हमसे कहा जा रहा है बताइए ये ऑफर एक्सेप्टेबल है या नहीं है दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर को. तो कैसे बताएं? हमें बताना क्या है कि हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि एक्विजिशन के नतीजे में टीटीएल की शेयर प्राइस कहाँ जाती है. टीटीएल की करंट शेयर प्राइस को उसकी एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस से कंपेयर करेंगे तो टीटीएल का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा. अगर एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस पोस्ट एक्विजिशन ज्यादा है करंट शेयर प्राइस से तो टीटीएल के शेयर होल्डर कहेंगे जी ठीक है जी. और बीटीएल के शेयर होल्डर कैसे देखेंगे? उनको जो 5 और 7 शेयर्स दिए जा रहे हैं, 5 और 7 शेयर्स दिए जा रहे हैं, दैट विल मेक सम दे विल दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू वैल्यू पर शेयर ऑफ बीटीएल. कि भाई 5 और 7 ऑफर बनती क्या है पर शेयर ऑफ बीटीएल, उसको बीटीएल की करंट वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा. बीटीएल की करंट वैल्यू क्या है और 5 और 7 से ऑफर क्या हो रही है उनको वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी करंट वैल्यू 10 रुपए है और 5 और 7 का मतलब है उनको से 12 रुपए ऑफर हो रही है, इसका मतलब 20% प्रीमियम है, दे विल सपोर्ट. तो हमें बेसिकली मेन टारगेट हमारा यहाँ पे जो है वो टीटीएल की पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस एस्टिमेट करना है. अगर हमें टीटीएल की पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस मिल जाए तो हम वैल्यू ऑफर टू बीटीएल भी निकाल सकेंगे, क्योंकि 5 शेयर्स ऑफ टीटीएल ही ऑफर किए जा रहे हैं ना उसको. तो हमें पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ऑफ टीटीएल मिल जाएगी तो बीटीएल को हम क्या वैल्यू ऑफर कर रहे हैं ये भी पता लग जाएगा. तो मेन फोकस हमारा है, हमें लेनी है टीटीएल की पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू. अब टीटीएल की पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू कहां से निकलेगी, ये एक चैलेंज है. होने क्या जा रहा है, ये टीटीएल है, ये बीटीएल, इसमें
पहले आके मिलना है उसने, और इसके बदले इसे निकलना कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर जाने, शेयर इशू होने ना, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर कैश जाता है तो वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्लस वैल्यू ऑफ टारगेट माइनस कैश पेमेंट होती है, ठीक है। बट यहाँ पे कैश पेमेंट है ही नहीं, तो बेसिकली टीटीएल की वैल्यू में बीटीएल ने आके ऐड होना है, लेकिन साथ ही रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जानी है। बीटीएल के में आके मिलना कैसे है? बीटीएल का टेक्सटाइल डिवीजन नहीं आके मिलेगा, उसके डिस्पोजल प्रोसीड्स मिलेंगी, क्योंकि वो तो चलना ही नहीं, हमारे साथ तो बिक जाना है। एंड बीटीएल का जो रिटेल डिवीजन मिलना है आके, उसकी वैल्यू प्लस दोनों के मिलने से सिनर्जीज पैदा होनी है, उनकी वैल्यू। तो हमने देखना है कि टीटीएल में ऐड क्या क्या हो रहा है, उन एडिशन का इंपैक्ट ऑन इट्स कैपिटलाइजेशन क्या क्या आने वाला है। तो मुझे जो चीज़ समझ आती है, जिसका मैं इसको सवाल को देखता हूं, हम शुरू करेंगे शायद करंट मार्केट वैल्यू ऑफ टीटीएल से। हम जाना जो है ना, मैंने पोस्ट एक्विजिशन, मैंने जो जाना है वो पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू ऑफ टीटीएल, उस पर जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में वहां पे जाने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा करंट इक्विटी वैल्यू ऑफ टीटीएल क्या है, फिर इसमें जो एडिशन होनी है, इसमें ऐड होगा नेट ऑफ टैक्स कंसिडरेशन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ बीटीएल्स मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, फिर इसमें जो ऐड होगा दैट इज वैल्यू ऑफ रिटेल डिवीजन ऑफ बीटीएल, इसमें वो तो जम होना है ना, बीटीएल का जो रिटेल डिवीजन है इसमें जम हो जाना है। टेक्सटाइल डिवीजन की प्रोसीड्स नेट ऑफ टैक्स आएंगी, क्योंकि वो तो बेच देना है आपने, वो आपकी प्रोसीड नेट ऑफ टैक्स कंपनी में आएंगी आपके पास, और रिटेल डिवीजन एज अ बिजनेस यूनिट आपके अंदर ऐड होगा। फिर इसके अलावा सिनर्जीज हैं, उसको हम पीवी ऑफ सिनर्जीज लिखेंगे, क्योंकि सिनर्जीज उसने हमें, सिनर्जीज में डिटेल में फर्दर आ जाएगा। सिनर्जीज कई तरह की हैं, एक आपकी है टैक्स लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस, वो भी सिनर्जी है। एक आपकी है 70 मिलियन की सेविंग परपेचुटी, और वन ऑफ पेमेंट है, उसको भी इसी सिनर्जीज में ही कहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है, या यहाँ पे भी लेस कर सकते हैं। वन ऑफ पेमेंट तो जा रही है ना, तो वन ऑफ पेमेंट कितनी थी? 35 मिलियन। उसने बताया नहीं, बट ये टैक्स लॉबल होती है, तो 35, इसको मैं कैलकुलेट यहीं पे कर देता हूँ। टैक्स रेट क्या है इनका? 30% इंटू 1.T, तो इसको मैं यहीं पे ही नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं। ये हमने रुपीज़ इन मिलियन में सारी कहानी बनानी है, और ये 35 इंटू 1 - T कितनी बनी? सॉरी 24.50, ये मैंने पहले यहाँ पे माइनस कर दी। तो आई शुड, दिस शुड गिव मी पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ऑफ टीटीएल, इसको मैं डिवाइड करूंगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी वैल्यू ऑफ टीटीएल, इसको मैं डिवाइड करूंगा पोस्ट एक्विजिशन नंबर ऑफ शेयर्स, तो मुझे यहां पे मिल जाएगी पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू पर शेयर। और बाय द वे यहां पे नंबर ऑफ शेयर भी मैं आसानी से पहले कैलकुलेट कर सकता हूं। करंट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं टीटीएल के? जी कहां से ले रहे हो? शेयर कैपिटल से, 750 मिलियन, राइट। करंट शेयर्स इन इशू हैं टीटीएल के 750 मिलियन, प्लस बीटीएल के इशू हैं 250, और इसको 5 और 7, तो यहां से देख लो आपके पोस्ट एक्विजिशन शेयर्स इन मिलियन कितने आ जाएंगे? 928.57। तो जब शेयर्स इन मिलियन हो, वैल्यू इन मिलियन हो, तो मेरी प्राइस अकॉर्डिंगली रुपीस में आ जाएगी, ठीक है। जब मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो फिर मैं टीटीएल्स शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट कर लूंगा, और मैं फिर बीटीएल्स शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे भी कमेंट कर लूंगा। ये मेरा आंसर कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। आगे सारी वर्किंग कहानी है। ये जी कहानी हमारी
इस कहानी को पहले समझ लीजिए जी। इस कहानी में कोई इतराज़ है तो पूछिए, कोई चीज़ समझ नहीं आई सवाल दोबारा मैं चाहूँगा आप देख लीजिए, क्योंकि हम वर्किंग पे जाएं तो आप उसको फिर फॉलो कर रहे हो। दिस इज़ द फुल स्टोरी। यहाँ तक हम पहुँच गए तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के 25 में से कोई 20-22 नंबर 21 नंबर यहाँ तक हो चुके होते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू देने के 3-4 नंबर ही, इससे ज़्यादा नहीं, 20+ नंबर यहाँ तक पहुँचने के हैं। मेरा अंदाज़ा है, इस अंदाजे को भी वेरीफाई कर सकते हैं हम। समर रेटिंग नहीं, समर रेटिंग की मार्किंग स्कीम ही नहीं अवेलेबल है। जी जनाब, कहानी एब्जॉर्ब अगर कर लें तो फिर मुझे बताइएगा, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। अच्छा जी, अब हम बात शुरू करते हैं फिर करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ टीटीएल। क्या हमें टीटीएल की वैल्यू ऑफ इक्विटी बताई गई है? इज टीटीएल लिस्टेड? इज टीटीएल लिस्टेड? नो। तो इसका मतलब हमें करंट इक्विटी वैल्यू ऑफ टीटीएल किसी मेथड से बनानी पड़ेगी। पूरा सवाल पढ़ते पढ़ते अगर आप नोट नंबर 8 पे जाएं तो आपको हिंट मिलता है कि शेयर्स ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज आर बीइंग ट्रेडेड एट प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 12। तो जनाब यहाँ पे उसने कहा कि आपके जो शेयर्स हैं वो टेक्सटाइल मिल के प्राइस अर्निंग रेशियो 12 पे ऑपरेट कर रहे हैं। असूलन टीटीएल अनलिस्टेड है, टीटीएल को आपने से वैल्यू करना है तो पी रेशियो शुड बी एडजस्टेड फॉर फैक्टर टू मेक इट सुटेबल फॉर अनलिस्टेड। इसी तरह बीटीएल को अगर आपने इस पी रेशियो पे वैल्यू करना हो तो पी रेशियो शुड बी एडजस्टेड।
लेकिन इस क्वेश्चन में ये मैं इसको भी छेड़ना नहीं चाहता, मैं इसको एडजस्ट नहीं कर रहा। इसलिए एडजस्ट नहीं कर रहा कि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि अगर मैंने एडजस्ट कर दिया तो हमारी फिगर्स जो फाइनल आएंगी वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बन जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको फिलहाल हमें एडजस्ट करना चाहिए। एग्जाम में सवाल आएगा, हम एडजस्ट करेंगे इसको, बट अभी फॉर द डिस्कशन से, क्योंकि अगर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया तो डिस्कशन हमारी इतनी मीनिंगफुल शायद ना रहे आगे चल के, जो हमने वैल्यूज़ के कंपैरिजन से डिस्कशन करनी है। तो फिलहाल मैं इसको एडजस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह बना हुआ है, इसका सोल्यूशन इस तरह प्रेजेंट हुआ है एडजस्टमेंट के बगैर, तो मैं भी इसको भी एडजस्ट नहीं कर रहा। तो मैं इसको फिलहाल वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू ऑफ TTL जो लूँगा, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास है 2900 मिलियन इंटू 12। तो करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आई? 34,800। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा जी, अब हम ये जो वैल्यू है हम बेचेंगे BTL का मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, उससे हमें कितना पैसा मिलने वाला है, इसके लिए वर्किंग वन बना दें। BTL से हमें कितना पैसा मिलने वाला है BTL के मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को बेच के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं नोट नंबर 2 और 3। BTL के नेट एसेट का 70% मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से है, और BTL का जो टेक्सटाइल डिवीजन है वो बिक सकता है 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स नेट एसेट वैल्यू। तो जनाब सबसे पहले मुझे बताइए नेट एसेट वैल्यू ऑफ BTL करंटली क्या है जी? रुपीज इन मिलियन में इट इज 3020। ये नेट एसेट वैल्यू ऑफ BTL है। 2500 इसकी इक्विटी है, रिजर्व्स 520 है। अच्छा जी, इसका मतलब नेट एसेट वैल्यू ऑफ, बल्कि नेट एसेट वैल्यू में सिंपली मैं सेल प्रोसीड लाता हूं। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन वो रहेगी जनाब 3020 का 70% का इंटू 1.5 3171, और इसमें से लेस कर दें इसका टैक्स इफेक्ट, क्योंकि इस पे गेन मिलेगा, कैपिटल गेन टैक्स आएगा, तो टैक्स इफेक्ट इसका माइनस करें, तो टैक्स इफेक्ट बेसिकली है 3020 का 70% का ऊपर का जो 0.5 है, यही टैक्स है। ये प्रॉफिट है, सॉरी ये प्रॉफिट है, और इस पे 30% टैक्स रेट कितना बनता है ये टैक्स? 317.10। लीजिए जी, यहां से आपको मिली नेट ऑफ टैक्स प्रोसीड्स 2853.9। दैट्स इट। ये जी आपकी नेट ऑफ टैक्स प्रोसीड्स बाय सेलिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ BTL 2853.90। नेट एसेट वैल्यू BTL की क्या है? इसका 70% नेट एसेट रिलेट करते हैं टेक्सटाइल को, और वो बिकेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ नेट एसेट वैल्यू। ये सेल प्रोसीड्स हैं, ये इसका गेन हो गया 0.5, उस पर 30% टैक्स लग जाएगा। नेट ऑफ टैक्स प्रोसीड 2853.9। ये पैसे बिजनेस में ऐड हुए 2853.90। जब TTL ने शेयर्स इशू करके BTL को अक्वायर कर लिया, तो डिवीजन बेच के ये पैसे मिले जो TTL के एसेट बेस में ऐड हो गए। जो पैसे एसेट बेस में आए वो वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐड हुए। अब हमें लेनी है वैल्यू ऑफ रिटेल डिवीजन, जो रिटेल डिवीजन एज अ बिजनेस TTL में एब्जॉर्ब होगा। उसकी वैल्यू कहां से आनी है, उसके लिए आपको नोट नंबर 3 में हिंट मिल रहा है। नोट नंबर 3 में आपको उसने रिटेल डिवीजन की सेल्स का एस्टीमेट बताया है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बताई है, और नोट नंबर 4 में उसके डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स बताई गई हैं। तो इस डाटा को लेके अगर चलें तो हम फ्री कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस डिवीजन ले सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाए आपको, PBIT माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, और उसके बाद फर्दर री इन्वेस्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन आ जाए, तो ये फ्री कैश फ्लो है ना आपके। तो यहां पे उसने बस हमें री इन्वेस्टमेंट्स पे इंफॉर्मेशन शायद दी हुई है कि नहीं दी हुई? री इन्वेस्टमेंट पे इंफॉर्मेशन उसने हमें नहीं दी हुई। तो इन द एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन री इन्वेस्टमेंट्स हम उसको जीरो ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम फ्री कैश उसका एस्टिमेट लेंगे PBIT लेस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस डाटा को लेके हम
अच्छा, बाय द वे यहाँ पे एक और assumption भी आ सकती है, मेरे जहन में आया, अक्सर क्वेश्चन में ये assumption भी ली जाती है, एंड दैट assumption इज, जो पिछले सवाल में गिवन थी कि टैक्स सेविंग ड्यू टू डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये भी अक्सर सवालों में assumption नजर आती है कि जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी जाए, वहां पे आप ये assumption भी ले सकते हो कि, अब ये एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में ना, मिसिंग एक इंफॉर्मेशन, हम ये assumption भी ले सकते हैं कि टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, नहीं, टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बनती है, जो एडजस्टमेंट बनती है क्योंकि इसमें पीबीआईटी बना हुआ है, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बनती है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि आप ऐड डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करते हो ना, डेप्रिसिएशन ऐड करो ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस करो। दोनों ली जा सकती है, मैंने कहा दोनों ली जा सकती है। मैंने आपको पहली assumption यही बताई कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, आप पीबीआईटी माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन नीचे assumption लिख लें, एक उससे भी ज्यादा सिंप्लीफाइंग और लेकिन लॉजिकल assumption, बेहतर assumption ये है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो होती है ना किसी भी रनिंग बिजनेस में, बेशक रिप्लेसमेंट कैपेक्स ही हो, कैपेक्स तो होता है रनिंग बिजनेस में, तो कैपेक्स इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, दिस इज मोर लॉजिकल assumption। और कैपेक्स इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या बनेगी कि आप पीबीआईटी माइनस टैक्स करोगे, दैट्स इट। अब ना डेप्रिसिएशन ऐड करनी है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस करनी है, क्योंकि वो दोनों बराबर है वैल्यूज, ठीक है। तो हम इस assumption पे चलते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन ऐड करें या ऐड ना करें। अच्छा, यहां पे ना ये बड़ी ट्रिकी चीजें आ जाती हैं, हम ये फिलहाल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो की assumption से चलते हैं, हम चल रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो की assumption के साथ। अच्छा जी, अब मैंने वर्किंग टू बनानी है वैल्यू ऑफ बीटीएल, और ये वैल्यूएशन मैं करूंगा फ्री कैश टू बेस्ड मैथड से। बीटीएल का जो डाटा मुझे दिया गया है, जो उसका रिटेल डिवीजन का डाटा गिवन है, हमारे पास रेवेन्यू अवेलेबल है, रेवेन्यू से पीबी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की रेशियो अवेलेबल है 20%, और हमें डेप्रिसिएशन का डाटा अवेलेबल है नोट नंबर 4 में। सो हम रेवेन्यू से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स माइनस करेंगे, हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, ठीक। ये हमारे फ्री कैश फ्लो का एस्टिमेट आएगा। पहले यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमें इसने डाटा दिया है कि ईयर 1000 मिलियन जो है विच इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 10% पर एनम इन सेकंड एंड थर्ड ईयर। पहले साल का 1000 मिलियन, सेकंड एंड थर्ड में ग्रोथ है, ऑनवर्ड 5% की ग्रोथ है। तो फिलहाल मैं आपको 1, 2, 3 को हैंडल करता हूं और 4 की कहानी मैं अलहदा आपसे डील करूंगा। फिलहाल मैं 1, 2, 3, 4 को फिलहाल कॉलम में नहीं छेड़ता। वन टू थ्री 4 टिल परपेचुटी की कहानी बाद में देखेंगे। अच्छा जी, हमें उसने फिगर दी है रेवेन्यू की। सबसे पहले साल का रेवेन्यू है 1000 बता दिया गया है। ऑनवर्ड उसने कहा इसमें इजाफा आना है 10% का सेकंड एंड थर्ड ईयर में। तो इसका मतलब सेकंड ईयर होगा ये 1100 और थर्ड ईयर होगा ये 1210। ये रेवेन्यू है जी। फिर हमें कहा गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20% है। तो इसका मतलब पहले साल इट विल बी 200, दूसरे साल इट विल बी 220, तीसरे साल इट विल बी 242। इसमें से अब आपने लेस करने हैं टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो ये बना जी 60, ये बना 66, ये कितना बना जी 72.6। और इसमें अब ऐड करेंगे आप डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उसने कहा हर साल 25 ही है। लीजिए ये फ्री कैश फ्लोज का डाटा आ गया। पहले साल का 165, दूसरे साल 179, तीसरा साल 194.4। ये हमारे रिटेल बिजनेस के कैश फ्लोज हैं। रिटेल बिजनेस जो हम एडअप करने जा रहे हैं टीटीएल में। बीटीएल का रिटेल बिजनेस जो टीटीएल में एब्जॉर्ब होने जा रहा है, ये उसके फ्री कैश फ्लोज का एस्टिमेट है।
अच्छा, कुछ चीज़ें जो हमें ख्याल रखनी होती हैं, छोटी छोटी सी बातें। ये जो हम फ्री कैश फ्लो ले रहे हैं, क्या ये फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर हैं या फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी हैं? सोच के बताइएगा, क्या ये फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर हैं या फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी हैं? विरसा रिटेल चेन है, उसके कैश फ्लोज हैं। भाई यहां से पता लग रहा है क्या गड़बड़ कर दी मैंने। ये क्या है? ये क्या बात है? इंटरेस्ट लेस होने की बात। इसका मतलब दिस इज फ्री कैश फ्लोज टू, विल बी कंसिडर्ड एज फ्री कैश फ्लोज टू। इसका मतलब इसके लिए जो डिस्काउंट फैक्टर चाहिए दैट विल बी के। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी को कहीं पे डिस्काउंट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी और हमने इसको ऊपर इक्विटी वैल्यू में तो ऐड करना है। फ्री कैश फ्लोज टू फर्म को वैक पे डिस्काउंट करो तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आती है। वैल्यू ऑफ बिजनेस वैल्यू ऑफ इक्विटी में जाके ऐड नहीं होती। हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी बना रहे हैं ऊपर, याद है ना? हम वैल्यू ऑफ इक्विटी की वर्किंग कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी में चले जाने के लिए हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी ही चाहिए। तो अकॉर्डिंगली ये डाटा उसी शेप में हमें दिया गया है। ये फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर है, हमें इसको केई पे डिस्काउंट करना है और केई पे डिस्काउंट करके हमने इसको वैल्यू ऑफ इक्विटी बनानी है। अब आपको चाहिए केई। बिल्कुल कैपन से निकालेंगे, ठीक है जी, उसमें तो कुछ ही राय नहीं है जी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि केई कैपम से आनी है। तो केई तो कैपम से आनी है, तो वर्किंग 2.1 में केई विल बी आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा है, और पुटिंग इन द वैल्यूज आर एफ इज 7, आर एम इज रिस्क प्रीमियम कितना है 6 इंटू बीटा। अब बीटा वैल्यू चाहिए। अब बीटा वर्किंग 2.2 से कहीं आएगी आपके पास, तो फिर आप केई पे पहुंच जाएंगे। अब जरा बीटा की तलाश शुरू कीजिए। यहाँ पे बीटा कौन सा चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें रिटेल बिजनेस का बीटा चाहिए, हमें ऐसा बीटा चाहिए जिसमें बिजनेस रिस्क हो रिटेल का और गियरिंग रिस्क हो टीटीएल का पोस्ट एक्विजिशन, विच इज द सेम एज द प्री एक्विजिशन। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि एक्विजिशन के बाद गियरिंग टीटीएल की नहीं बदलेगी। तो फिर दोबारा रिपीट करूं, हमें कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए ऐसा बीटा चाहिए जिसमें बिजनेस रिस्क होगा रिटेल बिजनेस का और गियरिंग रिस्क होगा टीटीएल का। प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन बराबर है, उसकी करंट गियरिंग ले लेंगे, उस पर हम उसको गियर कर लेंगे बीटा को। तो अब हमें चाहिए एसेट बीटा रिटेल बिजनेस पहले, फिर हम उसको गियर करेंगे टीटीएल की गियरिंग पे, इक्विटी बीटा बन जाएगा, उसको यहां पे कैपे में डाल के केई बना लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो बीटाज अवेलेबल हैं, हमारे पास एक बीटा इक्विटी अवेलेबल है बीटीएल का, एक बीटा इक्विटी अवेलेबल है टीटीएल का। अब जो टीटीएल है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है और बीटीएल पोर्टफोलियो है जिसमें से एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसका मतलब आपके पास पोर्टफोलियो का बीटा है, एक कंपोनेंट का बीटा है, और कंपोनेंट्स का वेट भी तो आपके पास है 70-30। तो यू कैन बिल्ड अप अ वेटेड एवरेज इक्वेशन, लेकिन वेटेड एवरेज इक्वेशन में डालने से पहले दोनों बीटास को अनगियर करना पड़ेगा, दोनों बीटास को अनगियर करना पड़ेगा। तो मैं अगर स्टेप यहां पे लिखूं, आप काम करेंगे वर्किंग से 2.2 में, सबसे पहले आप बीटा एसेट ऑफ बीटीएल लाएंगे, फिर आप बीटा एसेट ऑफ टीटीएल लाएंगे, फिर आप बीटा एसेट ऑफ बीटीएल जो कि एक पोर्टफोलियो है इसकी इक्वेशन बिल्ड करेंगे, बीटा एसेट ऑफ टीटीएल जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है इनटू वेट, टेक्सटाइल का वेट 70% है ना, नहीं हाँ 70%, प्लस बीटा एसेट ऑफ रिटेल, ये आपका एक्स रहेगा, इंटू 0.3। आप ये वैल्यू फीड कर लेंगे, ये वैल्यू फीड कर लेंगे,
ये वैल्यू आपका x रहेगा, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में फिर आप इस x को लेके जो कि बीटा एसेट ऑफ रिटेल है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे बीटा इक्विटी ऑफ रिटेल में यूजिंग गेयरिंग ऑफ टीटीएल। ये है कहानी सारी बीटा की एडजस्टमेंट की, समझ आई? थोड़ी सी सीटी से थोड़ी हिंट मिल रहा है ना, जो हमने सीटी में काम किया था वही चीज़ें यहाँ पे उसी तरह मिलती जुलती चीज़ें हो रही हैं, बट सिर्फ है कि आपको पहुंचना कहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मुझे जो बीटा चाहिए वो कौन सा, इसमें बिजनेस कौन सा होगा, फाइनेंशियल कौन सा होगा। दिस इज द की दैट यू टू लर्न। तो रास्ता तो फिर एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो पता लग जाता है भाई जाना कैसे, ऐसे पहुंचते फिर आप। तो जनाब शुरू करें जरा काम। तो बताइए जरा बीटा एसेट ऑफ बीटीएल क्या है, वन बाय वन मुझे वैल्यू बताते जाए। बीटा एसेट ऑफ बीटीएल क्या है, तो जो से जरा काम कीजिएगा, जरा फार्मूला लिखिएगा, सोच समझ के वैल्यूज डालिएगा और फिर मुझे बताइएगा। जैसे बीटा एसेट ऑफ बीटीएल का फार्मूला रहेगा आपका बीटा इक्विटी ऑफ बीटीएल इंटू ई ओवर ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी, ये फार्मूला रहने वाला है। और जैसे मैं वैल्यू अगर फीड भी कर दूं, बीटा इक्विटी ऑफ बीटीएल इज 0.91। अब यहां पे थोड़ी तवज्जो से चलिएगा, ई से मुराद क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो कि हमें अवेलेबल नहीं है, विल हैव टू वैल्यू। किस मेथड से बीटीएल की मार्केट वैल्यू किस मेथड से वैल्यू कर सकते हैं? नो ऑप्शन बट टू यूज पी रेशो। उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 500 है और पी रेशो यही 12 हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी नीड वैल्यू ऑफ इक्विटी, और वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हमारे पास पी रेशो अवेलेबल है टेक्सटाइल सेक्टर की, और हम यहाँ पे इसको ये प्ली ले सकते हैं क्योंकि इसमें 70% टेक्सटाइल बिजनेस ही है, इसका 70% तो इसमें टेक्सटाइल ही है ना, तो हम कह सकते हैं जी टेक्सटाइल बिजनेस की जो पी रेशियो है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू यूज इट। इसको हम यहाँ पे वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। वो तो एक अलग कहानी है, वो तो मैंने पीछे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, वो कहानी अलग है। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर भी है ना कि बीटीएल इज नॉट प्योरली टेक्सटाइल, पी रेशियो टेक्सटाइल सेक्टर की है, एंड बीटीएल इज पोर्टफोलियो दैट मे नॉट बी परफेक्टली सूटेबल, but in the absence of perfectly suitable information, we are assuming that this P ratio can also be used for BTL. TTL के लिए suitable थी क्योंकि TTL टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग थी, वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की P रेशियो है, वहाँ पे सिर्फ हमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी जो कि हमने अवॉइड की। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट का इशू भी है, यहाँ पे सुटेबिलिटी का इशू भी था, क्योंकि यहाँ पे जो BTL है वो पोर्टफोलियो है और बीटा है टेक्सटाइल का। तो बताइए यहाँ से जनाब BTL का डेट 1500 है, क्या आया एसेट बीटा, बीटीएल का एसेट बीटा? .77। दूसरा है केस टीटीएल का एसेट बीटा। तो टीटीएल का एसेट बीटा के लिए हमें टीटीएल का इक्विटी बीटा चाहिए, दैट इज 1.1। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, हमने ऊपर निकाली भी है कहीं 34,800, 34,800 प्लस इसका लोन है 17,500, बैंक लोन है ना, हम उसको बुक वैल्यू पे उठा लेते हैं इन 2.7। तो जनाब बताइए इसका एसेट बीटा क्या आया? 0.81। इक्वेशन बनाए हम, तो पोर्टफोलियो का बीटा है 0.77, टेक्सटाइल का बीटा है 0.81, टेक्सटाइल का वेट 0.7 है, बीटा एसेट ऑफ रिटेल चाहिए हमें x, ये 0.3 है। जनाब सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर बीटा एसेट ऑफ रिटेल।
0.68 और अब इसको गियर करें, बीटा एक्विटी ऑफ रिटेल बना लें, लेकिन अपने गियरिंग जो यूज़ करनी है वो आपने यूज़ करनी है TTL की। TTL की गियरिंग आपकी आ रही है जनाब यहाँ पे, ये पोस्ट एक्विजिशन में सेम रहनी है ना। बीटा एक्विटी ऑफ रिटेल .92 जी। एनी क्वेश्चन? ये सारी कहानी आपके सामने आ रही है जी सूटेबल बीटा निकालने के लिए। हमने KE निकालनी है फॉर डिस्काउंट फैक्टर रिटेल बिजनेस के कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर को डिस्काउंट करने के लिए, और ये है जी सूटेबल KE, सॉरी दिस इज बीटा इक्विटी। इसको हमने कैपा में डालना है 0.92 को, ये जी यहाँ पे 0.92 को फीड करना है, तो KE क्या आई 12.52, और इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे डिस्काउंटिंग पर्पसेस के लिए 13% पे। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? डिस्काउंट फैक्टर आ गया, KE 13% डिस्काउंट फैक्टर। आप जनाब मुझे ये 3 वैल्यूज़ PV दीजिए। इस वैल्यू के लिए मुझे आपके साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा, 4 से परपेचुटी के लिए हम काम करेंगे थोड़ा सा। आप मुझे 3 वैल्यूज़ का सम कीजिए जी। मुझे सम तीनों वाली बात तीनों बता दीजिए। पहली क्या है 0.03, 16, यहाँ तक कहानी हो गई। अब आगे 4 से परपेचुटी पे बात करनी है ना। 4 से परपेचुटी यहाँ पे इतनी सौखी नहीं है, वो भी ट्रिकी है। अच्छा, पहले इसको जरा ईयर 3 के बेस को समझिए। दिस इज नॉट अ कैश फ्लो, दिस इज आवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब रेवेन्यू ने आगे 5% से ग्रो करना है, रेवेन्यू ने आगे 5% से ग्रो करना है, डेप्रिसिएशन ने आगे कांस्टेंट रहना है। रेवेन्यू ने आगे 5% से ग्रो करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ने 20% ही रहना है, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ने 5% से ग्रो करना है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो इसकी कैलकुलेशन में शामिल है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी ने 5% से ग्रो नहीं करना। हमें इन कंपोनेंट्स को अलग-अलग करना पड़ेगा। एक तो था ना वो कहता जी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी 5% से ग्रो करेगी, फिर तो पीवी बड़ी आसान थी। फ्री कैश फ्लो 4 निकालते, ओवर KE माइनस G लगाते, इंटू 3 ईयर का फैक्टर लगा देते। अगर उसने कहा होता फ्री कैश फ्लो 5% से ग्रो करेंगे, इट वुड हैव बीन लाइक दिस। लेकिन अब इशू क्या है कि इसने ग्रो करना है 5% से, ये भी कैश फ्लो का सोर्स है, ये भी कैश फ्लो का सोर्स है। डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग मिलती है ना, ये भी कैश फ्लो का सोर्स है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब इसने नहीं ग्रो करना 5% से, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हमें टैक्स कैश प्रॉफिट अलहदा देखना पड़ेगा, उसके टैक्स को अलहदा देखना पड़ेगा, और टैक्स सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन को अलहदा देखना पड़ेगा। तो मैं इसकी वर्किंग, हम 2 तक पहुंचे थे, तो मैं वर्किंग 3 से ये वैल्यू लेने चलता हूं। मैं अगर वर्किंग 3 बनाऊं आपके लिए, तो भाई इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक इसका कंपोनेंट बनेगा कैश प्रॉफिट नेट ऑफ टैक्स कैश प्रॉफिट, और दूसरा बनेगा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल है। 25 मिलियन का सालाना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फ्यूचर में परपेचुटी में आना है, इसका 30% हमारा टैक्स सेविंग रहेगा, और ये कांस्टेंट है। डिवाइड 0.13 डिस्काउंटिंग इन परपेचुटी और एरियर की एडजस्टमेंट 30% 3 ईयर, 3 ईयर का फैक्टर लगना है इसका, क्योंकि ये 4 से परपेचुटी है ना जी। 0.93 693 लीजिए पीवी बोलिए, ये क्या बनी 39.98। ये जी कहानी होगी टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन की कंपोनेंट की। अब हम कैश
प्रॉफिट करें तो मेरा ईयर 3 का कैश प्रॉफिट है 242, ये नहीं, दिस इज नॉट कैश प्रॉफिट, दिस इज मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट तो ये है, एम आई राइट? कैश प्रॉफिट तो 25 डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूं ना, ये है। और डेप्रिसिएशन मैंने ऐड बैक क्यों की? क्योंकि इसकी टैक्स सेविंग मैं अलग ले रहा हूं। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट की कैलकुलेशन में लेस की जाती है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में वो लेस हुई है। क्यों लेस होती है? टैक्स सेविंग के लिए। तो टैक्स सेविंग तो मैंने अलग कर दी, तो वापस कर दो भाई इसको, उसको ऐड कर दिया। अब ये मेरा कैश प्रॉफिट है प्री टैक्स, इसको पोस्ट टैक्स होना चाहिए, और फ्यूचर में इसने 5% से ग्रो करना है। ये मेरा ईयर 4 का कैश प्रॉफिट आ गया। ये ईयर 3 की वैल्यू है, पोस्ट टैक्स वैल्यू है, और ये 1 साल की ग्रोथ 5% ही है। ईयर 4 की वैल्यू आ गई। ईयर की 4 की वैल्यू ओवर 0.13 माइनस 0.05 ग्रोथ है ना, इनटू 0.693। $1699.97 लीजिए जी, ये है सम आपका 4 से परपेचुटी 1739.95 ये 4 से परपेचुटी का सम है। पीवी है ये 1739.95 1739.95 लीजिए जी, सम कर दीजिए सबको। ये आपकी वैल्यू ऑफ रिटेल बिजनेस आ गई। इन चारों को सम कीजिए, 2160.86 2160.86, और इसको आपने जाके यहाँ फीड कर दिया 2160.86। अब हमारी सिर्फ पीवी ऑफ सिनर्जीज रह गई हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी कहाँ पे थे को वर्किंग पे? हम इधर बैठे हुए थे। ये जी हमारी वैल्यूएशन हो रही थी, ये वैल्यूएशन है, और ये आखिरी कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की। जी कोई सवाल? ये डिस्काउंटिंग का एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, टाइमिंग के लिहाज से, ग्रोथ रेट के लिहाज से। हमने डेप्रिसिएशन चूंकि कांस्टेंट फिगर थी, उसको हमने ऐड करके कैश प्रॉफिट्स को अलहदा ट्रीट किया, और डेप्रिसिएशन की टैक्स में हमने अलहदा लिया। दो कंपोनेंट्स में हमने फ्री कैश फ्लोज को ब्रेक कर लिया। 4 से परपेचुटी के कैश फ्लोज को दो कंपोनेंट बना के उनकी पीवी ली। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, जिसके बाद हमारी रह गई सिनर्जीज। सिनर्जीज के लिए कहानी थोड़ी और लंबी है, उसमें थोड़ी डिस्कशन और रिक्वायर्ड है। तो मुझे लगता है जो हमारी एक एडजस्टमेंट रह गई है उसको हम कल पे छोड़ते हैं, ठीक है? हमारी एक ये एडजस्टमेंट रह गई है जी, इसको इंशाअल्लाह हम कल आएंगे तो इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। मे भी लगने हमारे को 20-25 मिनट ही हैं, लेकिन थोड़े से फ्यूज़ मेरे भी अब उड़ने शुरू हो रहे हैं, आप लोगों के भी उड़ चुके होंगे अब तक। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे, और कल हम फिर मज़ीद आगे क्वेश्चंस को भी इंशाअल्लाह साथ साथ कवर करते चलेंगे। अभी कल मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है उसको भी इंशाअल्लाह मैं आपसे शेयर कर लूँगा। वैसे तो व्हाट्सएप अब ईजिली डाउनलोडेबल होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह वो लेके आऊँ, ग्रुप में भी आपके पास अवेलेबल, और हम उसको भी कल डिस्कस कर लें, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।